एक जो सोमनाथ गया था रेड पर लेटर विद मोहम्मद गजनी, एक हिस्टोरियन, ही इज राइटिंग, ओके, सिस्तानी, he is writing, and there's another Gardes, another historian also who's writing. दो लोगों ने सेम अकाउंट्स दिए हैं कि इमेजेस ऑफ अदर टू गॉडेसेस वर डिस्ट्रॉयड अरेबिया में। बाकी दोनों के अल्लात और अलूजा का डिस्ट्रॉय हो गया मंदिर, लेकिन जो मन्नत है वो क्या कह रहा है, देखो, इट इज सो इंटरेस्टिंग कि मन्नत इन ब्लैक स्टोन वो सीक्रेटली सेंट अवे टू कातियावाड़ इन गुजरात फॉर सेफ कीपिंग। कैन यू बिलीव दिस? उस ज़माने में भी जैसे हमारे ट्रेडिशंस हैं कि जहाँ इन्वेजन्स हुए, अटैक्स हुए, तो हम मूर्तियाँ छुपा देते हैं। हम एटलीस्ट भगवानों की प्रतिमाओं को छुपा देते हैं, मंदिर को जितना बचा सकते हैं बचाते हैं। सो इवन देन उन्होंने मन्नत की मूर्ति छुपा करके और गुजरात भेजी थी फॉर सेफ कीपिंग। और लेटर ऑन अनदर हिस्टोरियन सेज इट कि जब पहली बार मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ जी का मंदिर तोड़ा और जब शिवलिंग तोड़ा तो उसने इमेजिन करा कि ये शायद वही मन्नत है जो छुपाई हुई है। सो सम इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट अमीर खुसरो। इसको बड़ा सेलिब्रेट करा जाता है कि म्यूजिक का क्रेडिट इसको दिया जाता है कि इंडियन क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक इसने बनाया। मृदंग या पखावज को दो टुकड़े में काट के तबला बना दिया, सितार बनाई, पोएट था, ब्ला 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 ब्ला, इतना कुछ दिया। अभी यहाँ तक ऑलरेडी आप देख ही रहे हो, और आगे अप्रोप्रिएशन में आई विल टेल यू कि इनका अपना क्या था और इन्होंने हमें क्या दिया। तो ये किस चीज को क्लेम करते हैं कि व्हाट इनके पास था क्या जो ये हमको देंगे। I think in these difficult times, let's begin with prayers of wellness for everybody. First of all, as you just said, that we've been fighting, we've been resisting, and we haven't yet let the virus, a huge virus, capture us totally yet. So we'll definitely also win over this disease, which is like a death here standing in front of us with many heads. But I'm sure we'll fight it out. And my prayers for everybody, may Mahadeva bless all of us. And as you've already, talked about the subject a little bit, what we'll be talking about. So in the first episode, we talked about how the partition happened, or it's like how the partition of the country happened. A common man or a common human being, common person all over the world, not just India, thinks or believes or is made to believe that the partition happened because of the divide and rule policy of the British. So today we're going to be aiming at uncovering or raising the curtain from all such you know delusions called bhaichara or the brotherhood or the harmony that existed as if before the British arrived. So basically, it wasn't the a division created by them. Maybe after 1857, they kind of just used it, a little bit to get their. We covered a lot of it in the episode earlier. We tried to lift curtains off what they've been planning ever since 630, and it went on till 1947 and continues to be even now. So now we'll look at the intricate parts that played roles in it. Yes. So today I'm going to be mostly paying attention on most of the Muslim historians. Okay. One, two, the memoirs of the sultans and the Sufis, and also I have a truckload of evidences and slides and quotes for you. So I'll be paying attention to one, the Bhaichara, two, the Sufis, and then the appropriation of our Vedic culture into Sufism and how that fooled the people, which carries on till date. And we still have Hindus going and visiting the mazars because they do not know the facts. And then after that, we talk about slavery. Slavery ने क्या role play किया in the bringing about the demographic changes, and then the wild tactics used to capture and make our people slaves, and then how we resist it, because that is also very important.
we are always made to believe that we were a coward race which could never fight, which could never resist. So people just came in, they walked all over us, and period. So we're going to begin with that. So I'm going to start sharing the slides now. The first slide here, like you can clearly see that when this is the Time magazine cover of 22nd of April 1946, which says the Muslim tiger wants to eat the Hindu cow. Okay, and this is when the cabinet mission arrived in India to negotiate the end of the British Empire. It said that India should remain as one nation. And then we had people saying that any partition of India sounded terrible. Also, was suggested a federal India with 10-year constitutional review, which would allow Muslim provinces to leave Indian Union if they wished after 10 years. So nothing of this sort was accepted, and this clearly debunks the narrative of British wanted to divide the India. Now I'll just give you a little list of historians, the Islamic historians that we'll be talking about. Or this may, if you can see, there is even Amir Khusro is also there in this, and even the historian of the one who wrote the first biography of the Prophet also happens to be in this. So this also you have to take a quick look at these some of these evidences that we are talking of before we go on our spree to understand what really happened to our country. So they burnt villages, devastated land, plundered wealth, took Brahmins, women, children all captive, and they carried a moving prison, they say, of captives, jo saath mein chalti thi all the time, flogged with thongs of raw hide, can you believe it, and converted the prisoners. Then another Hasan Nizami says that the temples were converted to masjid and azan ascended the heavens. Idolatry was annihilated, and loud 5 times azan carried invitation to join or refuse at their own peril. कि अगर आप कन्वर्ट करते हो तो फाइन, कन्वर्ट नहीं करते हो तो you be ready to be killed. Now here Utvi says that the swords flashed like lightning among the blackness, yeah, of the clouds. Fountains of blood flowed like the fall of setting sun. The Muslims wreaked vengeance on Kafir enemies of Allah, killing 15,000, making them food for beasts. Allah bestowed upon believers booty beyond all bounds and calculations. माने इतना लूट करते थे कि इतनी लूट इकट्ठी करते थे कि they could not even calculate, there was no limit to the calculations. And here they're talking about 5 lakh beautiful men and women also were taken as slaves in the booty. Many fled. Many wretched widows and orphans were scattered abroad. Those who did not fly away were slaughtered. जो नहीं भाग गए उनको मार डाला गया. And Sultan gave his soldiers leave to plunder and take prisoners. ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि how these people, what were their tactics. They did not follow any war ethics, and what were their tactics. So this is something which Al-Utbi quotes. And then he talks about Ghazni. He says he utterly ruined the prosperity of the country. His brutality was such that Hindus became like atoms of dust scattered in all directions. Hindus cherished most inveterate aversion toward the Muslims. अगर हम ये कहते हैं कि today we do not, feel comfortable with them, or we don't feel that they are one like us or they behave like us. So this is not something which is set in today. This was set in way back. हसन निजामी क्या कह रहा है फॉर मोहम्मद गौरी, कह रहा है कि उसने रिवाइव किया जिहाद को हिंदुस्तान में, अजमेर में, एंड ही डिस्ट्रॉयड द पिलर्स एंड फाउंडेशंस ऑफ आइडल्स एंड टेम्पल्स एंड बिल्ड मॉस्क्स. हम जब श्री राम मंदिर की बात करते हैं, हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, हम many thousands or many lakhs of temples की जब बात करते हैं, and people get up and they claim and they say, oh, what is the proof कि श्री राम ever existed, what is the proof that there was a मंदिर. अगर हम ये बात करते हैं कि this is an unending civilization or continuous civilization की history है ये,
ये देश. So how is it that something that was just built 14 years, 100 years ago, 1300 years ago, 1000 years ago becomes, theirs, and then there's no sign of ours? So here their own historians are telling you कि उन्होंने मंदिर तोड़ के उनकी फाउंडेशंस और पिलर्स के ऊपर नए मॉस्क खड़े किए. Yeah. एंड दिस इज ऑल्सो 13th century मुस्लिम हिस्टोरियन जो लिख रहा है. और अब ये देखो कि वो एट्रोसिटीज की क्या बात कर रहा है. वो कह रहा है एट अलीगढ़ 3 bastions as high as heaven with the heads and carcasses became the food for the beast of praise. So this also, ये भी हमारा मोस्ट कॉमन हिंदू नहीं जानता है कि जहां जाते थे सर उड़ा के, सर काट के, they used to make a tower, टावर्स बना बना करके खड़े करते थे. कहीं कहीं पे तो उनको जिंदा तार से चिपका देते थे, and this to make a tower out of the heads or the live people. So he's saying that they became the food for beasts of prey. The tract was freed from idol and the foundation of infidels were destroyed. So जो हमारी, उनका कहना है कि जो हमारा बेस था, हमारा हिंदू सनातन सभ्यता का जो बेस था, वो भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. बट दे आर मिस्टेकन. ओके, नेक्स्ट. Gauri plundered Hindu treasures at Asni and Varanasi. The carnage of men went on until the earth was weary. कि जब तक धरती थक नहीं गई, तब तक the people were being killed, women and children were being captured and enslaved. And यहाँ वो खुद कह रहा है कि 1000 temples तो उसने बनारस और वहां पर ही तोड़ दिए. जो आप कह रहे हो काशी विश्वनाथ है ही नहीं या वहां का भी मंदिर था ही नहीं, तो वो ही इज अग्रीइंग, इब्न असीर इज अग्रीइंग दैट 1000 temples तो बनारस में ही तोड़ दिए गए थे, जिनके ऊपर मॉस्क खड़ी करी गई थी और उनके फाउंडेशंस खड़े किए थे. देन दे आर आल्सो सेइंग कि ब्राह्मण्स वर पुट टू डेथ. Then he even saying that lots of books were found. किताबें मिली, लेकिन इतने ब्राह्मण मार दिए गए थे कि उनको समझाने वाला, उनके कंटेंट्स को समझाने वाला कोई नहीं बचा था. दिस इज समथिंग दैट इब्न असीर सेज. 1857 के आसपास या सिक्स ने या डोगराज ने या इवन सिंधिया फॉर दैट मैटर, व्हाई डिड दे हेल्प द ब्रिटिश? दिस इज सच अ ह्यूज क्वेश्चन पीपल ऑलवेज आस्क. ओके, कुड इट बी पॉसिबल कि 1857 के पहले तक, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ, तो रिकैप्चर दिल्ली को रिकैप्चर करने के लिए डोगरों ने, सिक्स ने और सिंधिया ने एंड सम अदर्स आल्सो हेल्प्ड द ब्रिटिश. व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? पॉसिबल बिकॉज तब तक जो पॉलिटिकल हेड था भारत का, हु वाज ही? बहादुर शाह जफर. एंड ऑब्वियसली इस साथ साथ पैरेलली क्या चल रहा था? पैरेलली ये चल रहा था कि द इंडियन मुस्लिम्स वर एक्चुअली अलाइनिंग विद द ओटोमन्स in Turkey, and they had already taken him or agreed with him as a political head, a religious political head, उनका खलीफा बना के उसको they were prepared, and that is why they wanted him to fight the British, throw them out so that they could recapture and re-establish their kingdom. So that is probably one reason why the Sikhs and a few others decided or felt, this is what I think, whatever my analysis जो भी मैंने पढ़ा और समझा उससे, possibly because they did not want them to re-establish the Muslim principality or the Muslim rule in country again. That was just about 90 years before the partition happened. And now what happened कि ब्रिटिश ने जो क्रीमियन वॉर थी रशिया के अगेंस्ट टर्क्स की, ओटोमान्स की, उसमें द ब्रिटिश हेल्प द ओटोमान्स. So obviously, it became their responsibility and their duties to stop the Muslims from from fighting the British. So he immediately sent a fatwa. और फतवे में क्या लिखा है कि fighting the said jihad against the British is unlawful. ये ओटोमान ने कहा. So this fatwa was read all over the masjids. This is around the 1857, all over the country, and then they stopped their collaboration or fighting against the British. So this is one. Now second, it is a little necessary for us to understand the cult. Again, because इस पे भी क्वेश्चन पूछे थे लास्ट वाले टॉक पे लोगों ने कि oh this is not there. तो इसमें भी I've got a few quotes from their book and a few quotes from his own biographer, some things from the memoirs.
that permit certain things, certain atrocities as religious sanctions. So we'll be talking about that also in the slides to come. अब इसमें एक चीज जो यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द एंटायर अरेबियन पेनिनसुला जो था, द याथरिब, मदीना जिसे कहते हैं, दैट वाज कॉल्ड याथरिब, उसमें रहते थे मोस्ट ऑफ द जूस एंड द प्री इस्लामिक अरब्स. प्री इस्लामिक अरब्स वर, they used to worship many gods. And Makkah, which was in the middle of the desert, barren desert, जहाँ पे कोई agriculture नहीं होता था, वहाँ पे कुछ trader Meccans थे who were a little well off. The rest of them were average, cowards, these what do you call, भेड़ चराने वाले, camel चराने वाले. So they used to, इनका main income क्या था? It was from the revenue that the Kaaba generated. Kaaba had 360 idols, 360 मूर्तिज, और वहां से जो कैरवन्स पास होते थे, उन कैरवन्स से, क्योंकि दैट वाज अ ट्रेड रूट, तो उनके रेवेन्यूज और उनके टैक्सेस की वजह से दे यूज्ड टू, kind of, they lived on that. So Yathrib had Jews and these people, Arabs, pre-Islamic Arabs. Makkah had Arabs. Then even the people who built the Mesopotamian and the Syrian civilizations also. These people were all, these three were of the same ethnic stock. Okay. And so now comes my next slide, which is interesting. ये खुद जो है वहाँ के आर्कियोलॉजी और उनकी किताबें ये चीज को अग्री कर रही हैं जो हमने अभी बात करी, बिकॉज ये हमसे पूछा गया कि आप झूठ बोल रहे हो. ठीक है. सो अल्लाह was the moon god of the pre-Islamic Arabian and of the Christians and the Jews. Okay. So वहां से वो वर्ड लिया गया. Lat, Uzza and Manat were the three daughters of Allah and they were worshipped as goddesses. अब इनकी बुक खुद कह रही है in the 53.19 surah कि goddesses people worshipped. Eldest was Manat, second was Allah, and third was Aluza. Okay. Now, अब ये भी कह रही है किताब कि he made jihad a binding duty for Muslims. God made. Okay. Whereby they must keep fighting until Islam becomes the sole religion of the earth. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं कि Allah has purchased the life of believers who must devote to his command. कि भगवान ने जो है, उनके जो भगवान है, उनके जो गॉड हैं, उन्होंने तो सबकी जिंदगी को खरीद रखा है. और किस लिए खरीद रखा है? कि उनको जिहाद में ही एंगेज होना है, मरना है और मारना है in order to gain जन्नत और whatever. Okay. Again, God commands Muslims to plunder. वो कमांड्स हैं. ठीक है. परमिटेड है या टू प्लंडर द वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स. काफिर की पूरा हक है आपको ले जाने का. एंड जो इन जिहाद गेजेस एज सेक्रेड बूटी. हाँ, अल्लाह कहता है कि वो भी तुम्हारी अपनी है. उनके घर, उनका सब कुछ, जो कुछ भी है, दैट इज देयर होम्स, मनी, लैंड, जिस पे तुम कभी पहुंचे भी नहीं, तुमने कभी देखी भी नहीं, वो सब भी तुमको उसने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारी, तुम उसको ले सकते हो. रिलीजियस सैंक्शंस आउट ऑफ द बूटी एंड व्हाट यू एक्वायर, जो भी आप उसमें से एक्वायर करते हो उस बूटी में से, अ फिफ्थ शेयर जो है वो असाइन करना है टू द गॉड एंड हिज मैसेंजर. ओके. सो वो अल्लाह को दे रहे हो और उसकी मैसेंजर को दे रहे हो. अल्लाह को दे रहे हो मतलब पहले आप आपस में बटेगी और 1/5 जो है वो मैसेंजर को चली जाएगी. जब मैसेंजर चला गया उसके बाद में वो खलीफों को चली जाएगी. अल्लाह कमांड्स मुस्लिम्स टू इम्पोज टैक्सेस. ये भी अलाउड है. ठीक है. कि आप जो सब्जुगेटेड आपके लोग हैं, जिनको आप कैप्चर कर चुके हो, जिनको आप जिम्मी कहते हो, उनके ऊपर से भी आप टैक्सेस लेकर के भी पैसा ले सकते हो. ठीक है. अभी यहाँ पे एक और मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ. ठीक है. अब क्या हुआ, लास्ट टाइम ऑल्सो वी स्पोक, 622 से लेके 630 तक he personally led about 30 गजवास. एंड द फर्स्ट गजवा वाज इन 624 जो सीरियन मर्चेंट्स. अब एक और भी चीज हुई थी कि he started preaching in 610 and 615 से he started getting a lot of people started fighting back, repulsions होने लगे और revolts होने लगे. People were not happy with what he was preaching, and mainly those people who were against him were the Quraysh tribe of Mecca, who were
also happened to be his cousin brother, who was Abu Sufyan, and they started already attacking and retaking their people back. They started reconverting their people. So this is why he also wished to relocate, क्योंकि वहां पर वो possible नहीं हो रहा था कि he could establish his so-called religion. So he spoke to people in Yathrib. जब वो लोग आते थे pilgrimage पे, तो used to speak to them, and then he said that I want to relocate if you protect me. So in 622 he relocated, which is called Hijra. ठीक है. और वहां पे जाते ही first thing that they did was they started attacking their caravans जो वहां से निकलते थे, Meccans के caravans को. So first वाला 624 में हुआ. उसके बाद उन्होंने एक Jew tribe के ऊपर अटैक किया, which was a very established Jew tribe. और वहां जितने भी Jews थे यात्रिब में, they were the ones who were cultivators, जिन्होंने dates लगाई थी, cereals लगाए थे, and there were 3 major tribes over there. And these people were comparatively rich. They were less in numbers, but they were comparatively more prosperous, more sophisticated compared to the Arab. So when he attacked those, वहां पर भी, in spite of those people surrendering, finally 25 days तक तो carnage चलती रही उनके एरिया में. In spite of them surrendering, they captured and killed their men. So आप अभी यहाँ देखो कि कैसे कैप्चर करा है, कैसे मारा है, और उसका आगे का भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसके बाद जब वो कैप्चर हो गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट क्या था, मक्का था, क्योंकि अब मैक्सिमम रेवेन्यू काबा था, क्योंकि वहां से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है. सो वहां पर भी ही मार्च विद अबाउट 1400 पीपल, लेकिन उन लोगों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई. वो ट्रीटी 10 years की साइन हुई दोनों के बीच में कि दे स्टॉप द हॉस्टिलिटीज. उसके बाद भी देयर इज अ कोट दैट आई हैव पुट ओवर हियर व्हिच क्लियरली सेज कि ट्रीटी को भी सरपास करके इन्होंने फिर भी सारे कैरवन्स को काटा, मार डाला लोगों को. एंड आफ्टर दैट अगेन दे अटैक द मेक्का एंड दे कैप्चर्ड द काबा. सो दिस वी विल सी इन द स्लाइड्स. सो दिस वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमने उस ट्राइब की बात करी कि apostle went out to the market of Yathrib, Medina, and he dug trenches and stuck off their heads, जो कैप्चर करे थे आदमी उनके, their head in those trenches. About 900 of them were brought out to him in batches. तो 900 लोगों को वहां पे गड्ढों में डाल डाल के उनकी गर्दनें बैचेस में उड़ा दी गई. Women and children, about 1,000 women and children were taken captives after slaughtering them. Their men in the market of Medina. An apostle, meaning the Prophet himself, took Raina for himself as a part of the booty and sent Saad bin Zaid al-Ansari to Najd with the rest of the women and sold them for what? किस लिए बेचा उनको? Horses और weapons खरीदने के लिए बेचा. Okay? Now, ये जो हमने बात करी कि Treaty of Hubaya was signed to stop the hostilities between Apostle and Meccans for 10 years. But his men so harried the Quraysh that they cut into pieces every caravan that passed them. Then Prophet ordered all idols in Kaaba. जब Kaaba capture हो गया तो यहाँ पर खुद clear उनके अपने biographer ने लिखा है कि ordered all the idols in the Kaaba to be burnt and broken, and he stuck all idols in eyes with the end of his bow. खुद तोड़ा उनको. अली उसके कंधे पे खड़े होकर के idols of Hubal, and उमर ने जो है वो destroyed the pictures on the wall of Kaaba. ये खुद इब्न इशाक कह रहा है. So this was supposedly the first mandir destroyed, and therein the destruction of mandirs never stopped. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक चीज है which says सात बिन, क्योंकि अभी जो 3 देवियां थी, जो अगर आप उनकी पिक्चर्स भी देखोगे ना, तो the 3 of them, one has even सिंदूर in the मांग, one has a बिंदी. So they were so similar, क्योंकि as it is हमारे ट्रैवलर्स भी वहां तक जाते थे, हमारे देवी देवता भी वहां पर थे, and they were we have even ruled up till Ghazni, and they were intermingled. Their religious traditions were so similar to ours. So अब ये तीनों देवियों के अलग अलग मंदिर थे. So Saad bin Zaid is sent with 20 horsemen to destroy Al-Mannat, who's the eldest, उसका मूर्ति, उसका मंदिर. And then Walid is sent for Kinan and other tribes. Raiding parties were sent in all directions to destroy Allat and Aluza. मैंने बाकी जो दोनों देवियों के, तीनों देवियों के मंदिर जो हैं वो, अब इसमें एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, वो आपने पहले वाले स्लाइड में देखा कि इमेजेस ऑफ 2, ये एक जो
सोमनाथ गया था रेड पर, लेटर विद मोहम्मद गजनी, एक हिस्टोरियन, ही इज राइटिंग, ओके, सिस्तानी, he is writing, and there's another Gardes, another historian also who's writing. दो लोगों ने सेम अकाउंट्स दिए हैं कि images of other two goddesses were destroyed अरेबिया में, बाकी दोनों के अल्लात और अलूजा का डिस्ट्रॉय हो गया मंदिर, लेकिन जो मन्नत है वो क्या कह रहा है, देखो, इट इज सो इंटरेस्टिंग कि मन्नत इन ब्लैक स्टोन was secretly sent away to Kathiawad in Gujarat for safekeeping. Can you believe this? उस ज़माने में भी जैसे हमारे ट्रेडिशंस हैं कि जहाँ इन्वेजन्स हुए, अटैक्स हुए, तो हम मूर्तियाँ छुपा देते हैं। हम एटलीस्ट भगवानों की प्रतिमाओं को छुपा देते हैं, मंदिर को जितना बचा सकते हैं बचाते हैं। सो इवन देन उन्होंने मन्नत की मूर्ति छुपा करके और गुजरात भेजी थी फॉर सेफ कीपिंग। और लेटर ऑन अनदर हिस्टोरियन सेज इट कि जब पहली बार मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ जी का मंदिर तोड़ा और जब शिवलिंग तोड़ा, तो उसने इमेजिन करा कि ये शायद वही मन्नत है जो छुपाई हुई है। या so again coming back to another slide, after he passed away in the 632, तो जो भी कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे, जितने भी नए मुस्लिम्स बने थे, दे ऑल स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, एंड देन दे कैप्चर्ड सीरिया, ईरान, इजिप्ट और त्रिपोली, द अफ्रीकन प्रोविंसेस, ये सब इन लोगों ने अपने लिए अलग अलग कैप्चर करके अलग अलग इस्लामिक राज बन गए। और यहाँ पे आकर के हम ये देख रहे हैं कि थियोलॉजीज क्या क्या उस कल्ट के अंदर उस जमाने में ही डेवलप हो गई राइट अवे, ओके। सो दीज आर लाइक, एक है जो जिसको ये कलाम कहते हैं, वर्ड ऑफ गॉड, एक है जो जबरिया जो कि मैन की फ्री विल को डिनाई करता है, एक है कदरिया जो कि प्री डेस्टिनेशन की हम प्री डेस्टिन्ड हैं, भगवान ने हमारे लिए ये डेस्टिनी लिखी, वो भी वो करता है, डिनाई करता है। फिर जो फिक है वो दैट इज कॉल्ड द इस्लामिक लॉ। उसके बाद 4 स्कूल्स बने, एक हनफी था बेसिकली, जो कि बाकी 3 जो स्कूल्स थे वो आपको कहते थे चॉइस ऑफ इस्लाम और डेथ, और खाली हनफी था जो कहता था कि ओके यू मे चूज टू लिव बट यू पे टैक्सेस फॉर लिविंग। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टॉक टू यू अबाउट द, यहाँ तक थियोलॉजीज यू हर्ड, नाउ आई विल टॉक टू यू अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि वो शिया और सुन्नी क्या चीज़ है। And the Shias are the ones who follow the first 4 खलीफे एज इट इज फॉलो करते हैं, जिनको वो लोग और कोई क्वेश्चन नहीं करते, और सुनना फॉलो करते हैं, मीनिंग वट एवर प्रॉफिट डिड दे हैव टू इम्यूलेट, कॉपी, उसने जो भी करा, उठा बैठा, वट एवर जो भी एक्ट है जो हमने अभी भी पढ़े, वो सब जो उसको आंख बंद करके फॉलो करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड विच इज सुन्नी। एंड द शियाज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ हसन एंड हुसैन who follow the Shiite imams. They do not follow these books or the Hidayats or whatever. Okay. So now who are these? पर्शिया ने भी 17 साल तक लड़ाई करी, when they had attacked Persia, and when the capital fell, Tis Tufan, when that fell, और आगे जाकर के when I'll be talking to you, I'll be also talking about deceit, subterfuge, कैसे क्या क्या यूज करा गया, not just in India, all over the world, to win any country or to capture any country, or how were their own people used against them, also we will be talking in the talk ahead. So जब वो king, when he was escaping capital, when his capital was captured, his 3-year-old daughter called Sharbanu was a 3-year-old baby who was left behind जब सब भाग रहे थे. She was captured and she was gifted to the Caliph. The Caliph gifted her to Ali, वो prophet's son-in-law. आपने 9 साल 6 साल का तो वर्जन सुना, अब ये 3 साल वाला भी सुन लीजिए. This is also there in the records. I have a few slides ahead. So this child was captured, and when उन्होंने एक फिर फाइनल फाइट की तैयारी करी थी, which would have been a decisive factor, a decisive war, but there also they lost because they presented this child to them, showing to them कि we have your princess with us, and then they laid down their weapons, and fortunately उसको तो बचा लिया, but unfortunately that is how they lost. It's a whole story, a whole war कि वो कैसे हुई और कैसे कैप्चर हुआ. So this child, she at the age of 21 first gave birth to Hassan and then to Hussein. So now when these cults were developing and everybody was fighting among themselves, that is when 30 years later वो अबू सुफियान, जिसके कि अंकल को, और मुआविया was his son, उसके ग्रैंडफादर को, इन सबको मार दिया गया था in the battle of Badr. इन्होंने अब उसका बदला ले लिया, and they killed Ali, and they 6 months later they killed Hassan also, and then they
established this 661 mein, they established the caliphate, Abbasid Caliphate developed on his name. And then when his son came into power, that is Muawiya's son, उसके साथ में Hasan ul Jah, और Hasan was also killed, and that is the Muharram and the Battle of Karbala. Now, why was this hidden? जो इनके हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो इनकी इसकी मदरहुड है, वो छुपा करके दे दी टू Prophet's daughter Fatima, saying कि she was the mother of these two boys. क्यों? क्योंकि वो जो पर्शियन रॉयल हेरिटेज थी, जो एलिमेंट था, they had to suppress that element. So उसको छुपाने के लिए, so now also clearly आप पर्शिया की और अरेबिया की जो लड़ाई देखते हो, वो इसीलिए है. तो इन जो दोनों बेटों के जो डिसेंडेंट्स थे हसन हुसैन के, they became the Shia imams, and for many years they kept fighting, and many movements came in to recapture, because ye jo Zoroastrians the, they had the hope through their boys, through the Hassan and Hussein lineage, they wanted to re-establish their pre-Islamic kingdom. That is why they fought, and that is why till date you can see the difference. And aaj tak there was one, I'm forgetting the name, I think I may have it ahead and slide, of one of the heroes, Abu Lulu or somebody they call him, his real name I'm not remembering. उसके लिए आज तक पर्शिया सेलिब्रेट करता है every year, because he had killed Umar, the Khalif. So, and similar movements और दूसरी जगहों पे भी हुए थे, but unfortunately they were gradually lost, and people remained Islamic, and they remember nothing of their pre-Islamic ancestry. So, we will again come to the slides now. अब हमारा एक बहुत ही जो ड्रामेटिक चीज है ये स्टार्ट होने वाली है, ओके, जो कर्टन रेजर है लिटरली, okay. So basically, where does this word Sufi come from? This word comes from a word which is called Suf, which is the meaning of which means wool, and this legacy is from the Christian apostles, जो वो लोग जो कपड़े पहनते थे उससे ये सूफी बन गया. और सूफी जो दो तरह के बने, the ones which were sharia bound were called बाशरा, जो मैक्सिमम वही हैं, और there was बेशरा, जो कि शरिया को फॉलो नहीं करते. पर उन्होंने इंडिया में कभी भी कोई भी अपना रूल एस्टैब्लिश नहीं किया. So it is beyond any this thing के कभी the peaceful Sufis would have ever come into this country. So अब कुछ इनके आप ये सुन लो स्टेटमेंट्स है ना, ये पढ़ लो और सुन लो ध्यान से, जो प्रूव करते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सूफीज एंड द उलेमास. वो दोनों एकदम सेम है, ठीक है. और दोनों ने क्या करा, मतलब the Sufis also and the ulemas also, but here we are talking of the Sufis. They amassed huge wealth. They created huge khankas, जिसको कि lodges कह दो या जो भी कह दो. दरगाह is different and a khanka is different, which is like a rest house or a this thing. और chains भी बनाई हैं, बहुत सोने chains भी बनाई हैं. So there is one Abu Ishaq, जिसकी chains हैं दरगाहों की, खानकाहों की, from China to Persia, okay. Or so they all played sinister roles. They all took part in the nitty-gritty of the political system. और उन्हें इतना wealth इकट्ठा किया था कि they could impose, or play an important role in the power of the struggle. Important role in the power struggle of the princes or the sultans. Okay. So अल जुनैद जो है, ये सब सूफियों की वाणी है जो मैं आपको आके बता रही हूँ, जिनको आप बड़ा पीसफुल समझते हो. उन सब की बातें ध्यान से सुन लो कि ये क्या कहते हैं. ये कहते हैं कि all the mystic paths are barred except the footsteps of the messenger. आपको केवल प्रॉफिट के पच्चीनों पे चलना है, यही सूफीज्म है, ठीक है. उसके बाद एक अल कशारी है जो 10th सेंचुरी का है, वो डिक्लेयर करता है कि देयर वाज नो डिस्कॉर्ड बिटवीन द एम्स ऑफ द सूफी एंड द शरिया. दोनों एकदम सेम है, ठीक है. अल हुजूरी है जो कहता है कि कमिटमेंट ऑफ सूफीज इन अपहोल्डिंग द सुप्रीमेसी ऑफ इस्लामिक फेथ ओवर ऑल अदर रिलीजन्स. मतलब उनको क्या करना है, सबसे ऊपर क्या रहना है, खाली इस्लामिक फेथ रहनी है. No Sufis, not even those who have attained the highest degree of holiness, चाहे वो कितने भी pious, कितने भी holy, कितने भी वो नहीं हो, they are extinct
from the exempt from the obligation of obeying the religious law. मतलब रिलीजियस लॉ शरिया तो उनको फॉलो करना ही है, चाहे वो कितना भी उच्च कोटि का सूफी क्यों ना हो। और वो ये भी कह रहा है कि देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द अपोस्टल ऑफ अल्लाह एंड इज द indisputable law. We'll take a quick look at some of these सूफीज जो ऑर्डर्स जो बने यहाँ पे जो डेवलप हुए, और उसके पहले मैं थोड़ी सी तुमको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहती हूँ, विच इज दिस जिसको आप बाबा फरीद के नाम से जानते हो। बहुत ही सेलिब्रेटेड जिसे कहते हैं, उसका एक्चुअल नाम था शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिसको बाबा फरीद भी कहते हैं। वो काबुल से आकर के मुल्तान में सेटल हुआ और उसने जो सदर्न पंजाब के हिंदूज हैं उनको कन्वर्ट किया। तो आज आज जो पाकिस्तान में जो आप जितने भी मुस्लिम्स देखते हो, ये देन है बाबा फरीद के, बाबा बुल्ले शाह के, इन लोगों के। और वो किसका डिसाइबल था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, जो इंडिया आया था गोरी के रेडर्स के साथ में, ठीक है। और वो बाद में जाकर के मोइनुद्दीन चिश्ती का फॉलोअर बन गया था। तो दरगाहें भी कुछ कुछ मैं आपको बताती जाती हूँ। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो महरौली में है। बाबा फरीद जो है वो सुल्तान बलबन की डॉटर से मैरिड था। ही वाज मैरिड टू बलबन्स डॉटर। तो आप देखते चलिए, जो ये कहा जा रहा है कि उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है, तो आप यहाँ पे ये भी क्लियरली देख रहे हो। फिर बाद में इन लोगों के आपस में सुल्तानों के, और जब सुल्तान बदलता था कुछ होता था, इनके भी होता था कि इसका फेवरेट सूफी ये है, उसका फेवरेट सूफी ये है। तो जैसे दूसरा आया तो पहले वाले को जैसे कि बलबन का कजिन जब आया शेर खान, तो इसने बाबा फरीद के सारे जो यू नो वेल्थ आती थी उसके खानका पे, जमात खाने पे, वो सब रोक दी और उसके लिए फतवे कर दिए, जारी कर दिए कि ये बंद करो, बिकॉज डांस, बहाना क्या है कि ये डांस करते हैं, गाना गाते हैं। तो बाबा फरीद, जिसको तुम बड़ा भगवान कह रहे हो, वो खुद ही इतना डर रहा था, उसे ये लग रहा था कि कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है। तो तब जाकर के कहीं डर के मारे जो उसने वहां के हिंदू ट्राइब्स हैं उनको कन्वर्ट करना बंद कर दिया। वहां पर जो वेस्टर्न प्लेन्स थे, वहां पे जो कन्वर्जन हुए, वो देयर वाज वन कॉल्ड बाना अल हक जिसने करा। ओके। उसके बाद सईद यूसुफ अल दिन, ये अल कादरी का डिसेंडेंट, जिलानी का डिसेंडेंट है, जिसने वहां के सारे कच्ची मेमन्स, जो आप जिनको आप आज कच्ची मुस्लिम्स की तरह जानते हो, उनको कन्वर्ट किया। मोहम्मद गेजू देराज जो था, उसने बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के वीवर्स को कन्वर्ट करा। देयर वाज दिस वन कॉल्ड माँ वरी कंदायत, जिसे कंदायत कहते थे बिकॉज ऑफ द लोहे का डंडा वो रखता था अपने पास। उसने डेक्कन में आकर के सारे जैनों को कन्वर्ट कर दिया। शाह जलाल और एक तबरीजी था जलालुद्दीन, उन्होंने ईस्ट बंगाल, जो आप जिसको आज आप बांग्लादेश के रूप में देख रहे हो, उसके लोगों को कन्वर्ट करा। फिर एक विलेज था शुरावर्द करके, जहाँ से ये शुरावर्दी सिलसिला शुरू हुआ। तो शहाबुद्दीन शुरावर्दी जो था बगदाद का, उसने बहाउद्दीन को एक खलीफा बना करके मुल्तान भेजा, और बहाउद्दीन ने वहाँ के सारे लोगों को कन्वर्ट करा। एंड ही आल्सो इनवाइटेड इल्तुतमिश टू इन्वेड मुल्तान। मतलब ये लोग एक भी, ऑल ऑफ देम यूज्ड टू एक्चुअली, किसी न किसी को इनवाइट करते थे, या वो प्लीड करते थे टू कम एंड हेल्प देम अगेंस्ट द इन्फिडल्स। फिर जो बहाउद्दीन का बेटा था, ग्रैंडसन था रुकनुद्दीन, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा प्रॉफिट मानता था। तो फिरोज शाह तुगलक जो है उसके अगेंस्ट हो गया। ऐसे करके कोई ना कोई किसी के अगेंस्ट रहा। और बहाउद्दीन, ये दिस वन रुकनुद्दीन जो है, ही वाज अलाउद्दीन का बड़ा पेट था, बट फिरोज शाह वेंट अगेंस्ट हिम। तो फिरोज शाह ने उसको लिटरली, यू कैन रीड दिस ओवर हियर, कि रुकनुद्दीन called himself the prophet of God. This Firoz Shah Tughlaq की मेमोयर में लिखा हुआ है कि people tore him and his followers into pieces and broke his bones into fragment। मतलब इतनी राइवलरी और एनिमोसिटी होती थी आपस में कि एक सूफी को कोई बड़ा एग्जॉल्ट कर रहा है या बहुत सेलिब्रेट कर रहा है, और दूसरा कोई जो उसको मार डाल रहा है। देन अब जो शहाबुद्दीन के फॉलोअर्स थे, स्पेशली जलालुद्दीन बुखारी, इसने जाकर के पूरे ऊंच गुजरात, पंजाब और कश्मीर और दिल्ली वगैरह में जाकर के कन्वर्जन्स करे। यहाँ पे there's another thing that I want to tell you, one interesting thing that I want to tell you. There's this मुल्तान का जो मैं आपको बता रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। We are all very very well versed or well aware of this Rajasthani folk music, right? And we love it कि these folk singers, or they are
मिट्टी से उठे हैं और इतना गला है और इतना अच्छा गाते हैं एंड ऑल दैट। आर यू अवेयर हु दीज आर? तो जब मुल्तान में 11th सेंचुरी में सूफीज्म आया और व्हेन सिंध फेल एंड लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सिंध मुल्तान फेल, दैट टाइम ये मास कन्वर्जन हुए हिंदूज के। और बाद में जब सूफीज्म आया उस टाइम पे भी कुछ एस्केप किए होंगे, कुछ राजस्थान आ गए, फिर लेटर ऑन दीज आर ऑल कन्वर्टेड एंड these are the Langa tribe, लंगा ट्राइब विच इज अ सिंगर्स। वहां पर भी वो सिंध में और राजाओं के वहां वो मंदिरों में गाया करते थे, तो यहाँ पर भी दे सिंग। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हम में से कोई नहीं जानता है कि वो हिंदू हैं, और वो हिंदू थे। तो वो जो आर्ट लेकर के आए हैं वो हिंदू कल्चर और हिंदू आर्ट ही है। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे अब इस्लामिस्ट हैं, दे आर ऑल मुस्लिम्स। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि इन द लास्ट 5 odd years, स्पेशली दिस कोक स्टूडियो वगैरह की पॉपुलैरिटी के बाद, दे स्टार्टेड राइटिंग खान। तो जैसे अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि जैसे धीरे धीरे आपकी मेमोरी से जब आप कोई चीज बदल देते हो, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये जो लांगा टाइप वाला कान लिखने वाला, कि जब आप एक जनरेशन बदल जाती है तब तक अगली जनरेशन भूल जाती है। सो आप जो खान लिख रहे हो तो अगली जनरेशन तक लोगों को या ऑलरेडी भूलना भी शुरू हो गया कि वो लांगा है। अदरवाइज इज टू ऑलवेज राइट अब्दुल रशीद वट एवर लांगा, फलाना फलाना साबिर लांगा, ओके। बट नाउ दे आर राइटिंग खान। तो और 10 साल बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी, इफ एट ऑल, हम जैसे ढूंढ भी रहे हैं तो पता भी नहीं चलेगा कि देवर एवर Hindus once upon a time. So let's come back to some more interesting Sufi slides. नाउ जैसे ही 11th सेंचुरी के बाद यहाँ पे ये सेटल होने शुरू हो गए सूफीज, तो अब इन्होंने और दूसरों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। लाइक आई टोल्ड यू कि 1911 में अजमेर के मुसलमानों ने और सूफियों ने गजनी को फिर से बुलाया टू हेल्प देम अगेंस्ट द हिंदू काफिर्स। और मोहम्मद बिन महमूद ऑफ गजनी ने रिटर्न में क्या मांगा? उसने एक प्रॉमिस ली कि अब से जो मेरा नाम है वो आप खुतबा, खुतबा क्या होता है? फ्राइडे की नमाज के बाद जो 15-20 मिनट आधा घंटे का जो लेक्चर होता है उसे खुतबा कहते हैं। तो उसने कहा कि मेरा नाम, और मेरे को तुम यहाँ पे जो है ग्लोरीफाई करोगे, मेरी बातें करोगे, तो मेरा नाम इंक्लूड करोगे तो ठीक है, मैं आता हूँ और इन हिंदुओं को मारता हूँ। ओके। सो फिर एक नया उसके बाद ऑर्डर शुरू हुआ 13th सेंचुरी में इन्हीं शुरावर्दियों का। सो इनकी मैं खाली बताते जाती हूँ। मज़ारें जो हैं, दरगाहें हैं बहुत बड़ी-बड़ी। बिहार में है दरगाह मनेर शरीफ, ठीक है? कमलादुन या फिरदौसी की। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके बेटे का शरफुद्दीन अहमद का बनाया, व्हिच इज़ कॉल्ड बिहार शरीफ। उसके बाद फिर जमालुद्दीन देहलवी, जिसे जमाली कहते हैं, वो सिकंदर लोदी का कोर्टियर था। ओके, उसकी टोम है मेहरौली में। फिर जमाली का जो बेटा है वो हुमायूं और बैराम खान का लॉयल था, और अकबर ने उसे क्या बनाया था? अपना शरिया एडवाइजर, सुदूर सुदूर सुदरू सुदूर कहते थे उसको। तो वो उनका लीगल एडवाइजर है। तो ऐसे हर सुल्तान के कोर्ट में जो सूफीज हैं वो भी लीगल एडवाइजर्स हुआ करते थे। और जो उसका भी बेटा, दूसरा बेटा था, दैट वाज शेर शाह के कोर्ट में था। तो ये दे वर ऑलवेज लाइक आई सेड, ये प्रूव करता है यहाँ पे कि दे वर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, एंड दे ऑलवेज गाइडेड द रूलर्स एज इन शरिया एंड वट एवर रिटन इन द कुरान। सो कुछ भी पीसफुल नहीं हुआ। यहाँ जो हम दरगाहों की जब बात कर रहे हैं, तो जो बहुत ही मिसफॉर्च्यून है हमारा कि हिंदूज, आई रियली होप कि ये स्लाइड्स हम व्हाट्सएप की तरह या कैसे भी तरह लेट्स जस्ट कीप स्प्रेडिंग दिस। कोई लोग इनको ट्रांसलेट करो, क्योंकि इस पे क्लियर लिखा है, पेजेस नंबर लिखे हैं, दे आर सोर्सेज लिखी हैं कि आप इसको स्प्रेड करो, लोगों को पता चले कि व्हाट वाज डन टू देम। ये चादरें भेज रहे हो, किसी की दरगाहों पे जाकर के एलईडी लाइट्स लगा रहे हो, उनको सेलिब्रेट कर रहे हो, और डू यू नो कि तुम्हारा पैसा जो वहां जा रहा है, मैक्सिमम पैसा कौन चढ़ाता है वहां पे? हिंदू चढ़ाते हैं। और उन लोगों को चढ़ा रहे हो जिन्होंने, और आगे मैं आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द गाजी सूफीज, उसमें से आपको एक एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको और पता चलेगा कि बाकियों ने भी क्या क्या किया होगा। बिकॉज हम पूरा दिन तो बैठ नहीं सकते यहाँ पे टू डिस्क्राइब एवरी वन। ओके, नाउ दिस वेरी सेलिब्रेटेड, जिसपे अभी थोड़े दिन पहले भी चादरें भेजी गई, सारे उन्होंने भेजी। इट इज अ वेरी सॉरी स्टेट कि हमारे हम जिनको चूज करके, जिनके ऊपर इतनी होप रखते हैं, we respect them, we honor them, but we certainly we are not saying कि आप कुछ बुरा करो, but at least
सच तो उजागर करो, ब्रिंग फॉर्थ द रियल हिस्ट्री, व्हाट इज द ट्रूथ। हाउ कैन यू से कि समवन वो इतना पीसफुल और इतना, ये भी इस पीसफुल का ध्यान से सुनो कि ये पीसफुल ने क्या क्या करा, ठीक है। जब ये अजमेर आया, ओके, ही हैड कम टू वाया लाहौर टू यू नो दिल्ली, एंड फ्रॉम दिल्ली टू दिस थिंग अजमेर, okay, and he had come also with the jihadi this thing। और एक चीज यहाँ पे I would like to say कि each and every Sufi who was not born here in India had actually come with the group of jihadis, basically as the holy warriors of Islam they had come। एंड व्हाट वाज द एम, अगर होली वॉरियर वॉरियर बन के आ रहे हो तो क्या एम है, इस लैंड को कैप्चर करना है, यहाँ के लोगों को कन्वर्ट करना है, और इसको कैप्चर करके जैसे बाकी देशों को इस्लामिक बनाया है वैसे इसको भी इस्लामिक बनाना है। ये तो अंडरस्टूड है ना, इसमें इतना सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, सो नाउ सी व्हाट हैपेंड व्हेन ही हैड कम हियर। अजमेर में जाके जब वो सेटल हो गया, तो जब वो अजमेर में गया और ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री, सो सम कैमल मैन टोल्ड हिम कि यहाँ से उठो, ये राय की जमीन है, यहाँ नहीं आना। तो वहां से वो उठ करके ही वेंट नियर द पंसेला लेक। वहां पे गए तो कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि अच्छा क्यों ये हो रहा था ऐसा, क्योंकि तब तक तुम इतनी मारकाट मचा चुके थे कि द हिंदूज यूज्ड टू शाय अवे, दे यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम द वेरी साइट ऑफ अ मुस्लिम और अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, ओके। सो एक जो डर अभी भी लगता है कि हम किसी बहुत तंग सी बस्ती में जाते हैं तो हम बहुत सिक्योर्ड और कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बड़ा एलियन सा लगता है, वो आज भी लगता है, हमें डर सा लगता है, सो दिस वाज द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग टू पीपल ओवर देयर, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच बारबारिज्म। So they told him to move away. So the Brahmins near the lake also told him, क्योंकि क्यों मना किया लेक पे नहीं आओ, क्योंकि ये लेक्स को भी पोल्यूट करते थे, ये गाय काट के लेक में डाल देते थे, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। तो जो जिससे कि हिंदूज इनको स्टॉप करते थे अपने पास आने से। तो अब ये देखो कि क्या बोला गया, कैसे सेलिब्रेट करा गया, ओके। और जब वो आके रहा तो वहाँ कैसे क्लियर लिखा हिस्ट्री ऑफ सूफिज्म में, बुक में पेज 117 पे, कि मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वेंट्स slaughtered a cow and cooked kebabs at the sacred place surrounded by 1,000 Hindu temples। अब आप खुद ही इमेजिन करो कि 1,000 मंदिर है जहाँ वहाँ गाय काट करके और आप उसके कबाब्स बना करके बिठा के खिला रहे हो और खा रहे हो, ठीक है। अब ये जो अन्ना सागर लेक की मैं बात कर रही हूँ, उस पे आगे जाके हम बात करेंगे, बट दिस वाज बिल्ट बाय पृथ्वीराज चौहान्स ग्रैंडफादर। जब उन्होंने अराउंड द 11th सेंचुरी ही आउस्टेड ऑल द मुस्लिम्स फ्रॉम हिज लैंड एंड ही क्रिएटेड दिस लेक ओवर देयर। सो ये अन्ना सागर जो लेक उन्होंने बनाया था वहां पे, तो कह रहे हैं कि क्योंकि डांट के भगाया था कि भाई यहाँ से पानी मत पियो ब्राह्मणों ने इनको, तो गुस्से में मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या करा कि जो होली लेक्स हैं उनको सुखा दिया अपने मैजिकल इस्लामिक पावर से। कैन यू बीट इट, ओके। और उसके बाद ही एंटर्ड द अन्ना सागर टेम्पल और ब्राह्मणों को पूछा कि क्या ये मूर्ति तुमसे बात करती है। तो जब इट सीम्स वो खुद ही कह रहे हैं कि जब नेगेटिव जवाब मिला तो व्हाट डिड ही डू, उसने उस आइडल को, माने हमारी प्रतिमा को, कलमा पढ़वा दिया और उसको हिंदू ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट कर दिया, ओके। आगे फिर पृथ्वीराज ने जो है उसके पास अपने ऑब्वियसली अटैक करने भेजा उसको, मोइनुद्दीन चिश्ती को। तो आगे क्या लिखा जा रहा है कि उसके पृथ्वीराज के जो मैजिशियन था प्राइम मिनिस्टर जो लड़ने आया था, इट सीम्स, हाँ, उसने ख्वाजा को अटैक किया 700 मैजिकल ड्रैगन्स के साथ, 700 लोगों के साथ और 1500 मैजिकल डिस्क्स के साथ, जिससे कि वो जो एक भेड़ हिरन की स्किन पे बैठ के उड़ रहा था ऊपर ऊपर। तो ख्वाजा ने यानी मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना जूता उतारा और उसको जयपाल के ऊपर फेंका, जैसे जूती जो है ख्वाजा की वो जमीन पर पटक लाई उसको, जयपाल को, और जयपाल जो है गिर के गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगा। ये लोग लिख रहे हैं खुद, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि जब गौरी भाग गया एक बार यहाँ से तो उसने क्या लिख के भेजा चिश्ती ने उसको। और ये चिश्ती क्यों, चिश्त एक गांव है, एक गांव था चिश्त हिरत में अफगानिस्तान में, जहां से ये आया था। तो वो कहता है कि हिंदू आर्मीज कुड ओनली बी वन बाय डिसेप्शन नॉट बाय मिलिट्री माइट। वो कहता है कि किसी भी ताकत से, किसी भी मिलिट्री की ताकत से तुम इनको नहीं जीत पाओगे, तुमको इनको धोखे से ही हराना होगा। ये आगे जाकर के आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे, इसलिए मैं इसको पॉइंट आउट यहाँ पे कर दे रही हूँ, सो दैट हम बार बार उन वर्ड्स को रिपीट नहीं करें और हम क्लियरली हमारा खाली फोकस करें कि यस दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट।
ओके, फिर वो जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया, तब भी ये जो है इसका क्रेडिट अपने आप को देता है, अपनी इस्लामिक पावर को देता है। कहता है कि वी हैव सीज्ड पृथुरा अलाइव एंड हैंडेड हिम ओवर टू द आर्मी ऑफ इस्लाम। ओके, ये हुई चिश्ती की बात। अब जो पीर साबरी जिसकी मैं बता रही थी, जिसने कि जैन्स को कन्वर्ट करा डेक्कन में आकर के, वो कह रहे, वो कैसा लिखा है उसके बारे में कि ही वेज्ड जिहाद अगेंस्ट द राजा ऑफ बीजापुर एंड ही विद एन आयरन बार, मतलब वो लोहे का लठ रखता था जिसकी वजह से उसका नाम कंदाया रखा गया। ही ब्रोक द नेक्स एंड हेड्स ऑफ मेनी राजास एंड ड्रोव देम टू डस्ट ऑफ डिफीट। तो जो इन्फिडल्स हैं, काफिर हैं, वो इतना पछताते थे कि अरे यार हम कहाँ पैदा हो गए हिंदू धर्म में, हम तो और उन्होंने अपने आप को महाबली के हाथों में दे दिया और कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद अनदर दिस वन काजी मुगीजुद्दीन कहता है अलाउद्दीन खिलजी को कि हिंदूज आर द डेडलीस्ट फोर्स। ये देख लो आप, आज भी किसी की भी उठा के पढ़ लो, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट किसी की भी उठा करके सुन लो, ये आज भी यही कहते हैं कि ये डेडलीस्ट फोर्स हैं प्रॉफिट के एंड दे मस्ट बी एनिहिलेटेड, इनको मारना ही है। तो आप इन गलत फहमियों में मत रहो कि कोई बहुत भाईचारा है और आपको कोई मारना नहीं चाहता है। डोंट बी अंडर दोज रॉन्ग इंप्रेशंस। यहाँ क्लियर लिखा है कि उनको मारना है और दे हैव टू बी सब्जेक्टेड टू द वर्स्ट ह्यूमिलिएशन। द ऑनर ऑफ इस्लाम लाइज इन इंसल्टिंग कुफ्र। इसी में इस्लाम की तारीफ है या उसकी प्राइड है कि वो काफिरों को और कुफ्र को इंसल्ट करे। और जो पर्पस भी है जजिया का, वो रेवेन्यू के अलावा क्या है, इन रेवेन्यू तो लेना ही है लेकिन इनको ह्यूमिलिएट भी करना है इस एक्सटेंट तक कि दे मे नॉट बी एबल टू एंड ड्रेस वेल एंड लिव इन ग्रैंडियर। इन द लास्ट टॉक ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट अहमद सिरिंदी कि दो नेशन थ्योरी जो है वो खाली आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं दी, आपको पहले सबसे पहले अहमद सिरिंदी ने दी कि जब ये यहाँ पे आ गए, व्हेन दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट एंड व्हेन दे रियलाइज्ड कि बियॉन्ड अ पॉइंट इनको कैप्चर करना मुश्किल हो रहा है, तो वो टेरिटरी कैप्चर करने में लग गए जो आपको आज भी विजिबल है। और जो जो टेरिटरी कैप्चर करते जाओ उसको दारुल इस्लाम बनाते चले जाओ। ओके, सो ही प्रोक्लेम कि इस्लाम और हिंदूज तो कभी एक साथ, हिंदुइज्म कभी एक साथ रह ही नहीं सकता, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। ओके, और उसने शरिया इन्फोर्स करा शाहजहां के और जहांगीर के कोर्ट में, ये वी टॉक्ड अर्लियर आल्सो। एंड जो सूफी मियाँ मीर था एक और सिरिंदी, इन दोनों ने जब गुरु देव को मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, तभी इन्होंने कहा कि दिस इज अ ग्रेट इस्लामिक विक्ट्री। तो ये जरा सरदार भी सिक्स भी जितने हैं वो ध्यान से सुन ले इन चीजों को भी। और शाह वलीउल्लाह जो था उसने भी टू नेशन थ्योरी दी। उसके बाद फिर जाकर के सईद जो फाउंडर ऑफ एएमयू है, उसने भी ये थ्योरी दिया। तो तीन लोगों ने ये थ्योरी दी आपको टू नेशन की बिफोर जिना। Dhimmis must remain terrified and trembling, says सूफी शाह वलीउल्लाह। अब सूफीज और क्या क्या चीजें कहते हैं कि वो कहते हैं अनक्वेश्चनड ओबीडियंस ऑफ एवरी सूफी एंड मुस्लिम टू द डिक्टेट्स ऑफ उलेमा। तो उलेमा और जो यानी कि जो इनका मुल्ला है और सूफी में कोई फर्क नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपको बिना किसी सवाल के इनको फॉलो करना है। और फिर अब आप निजामुद्दीन औलिया, वो जो भी बड़ा सेलिब्रेटेड, वो भी ये कहता है कि उलीमा जो स्पीच से सीख करता है, हम तो अपने बिहेवियर से सीख कर लेते हैं, मतलब बेवकूफ बना करके हिंदुओं को हम उसको अपने बिहेवियर से सीख कर लेते हैं। जमाल खुईमामुद्दीन कहता है कि निजामुद्दीन औलिया को मैंने बहुत सालों तक देखा, बट लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा कि उसने अपनी एक भी सुन्नत या अपनी एक भी, मतलब यस, ब्लाइंडली फॉलोड द पाथ ऑफ द प्रॉफिट। उसने कुछ भी कभी मिस नहीं किया और वो अपने खुतबों में ये एम्फसाइज करता है। ये भी सुनो ध्यान से, क्योंकि जो ये भी एक है ना कि ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और ये अरब को एप करते हैं। एक तो अरबियों की और तुर्की की और पर्शिया की जो लड़ाई है आपस में, वो तीनों अपने आप को दे थिंक दैट आई एम द गॉडफादर ऑफ दिस कल्ट। सो थ्री ऑफ दोस कंट्रीज, और हमारे यहाँ के जो है वो इनके कंपटीशन में लगे रहते हैं। तो ये जो है क्या कहता है निजामुद्दीन औलिया, क्या कहता है अपने खुतबों में, क्लियर बोलता था कि अल्लाह क्रिएटेड जन्नत फॉर मुस्लिम्स, ओके, और जहन्नुम फॉर काफिर इन ऑर्डर टू रीपे द विकेड फॉर व्हाट देव डन। और उसने ये भी कहा कि चाहे ये जो रिकन्वर्टेड है ना, कितनी भी अपनी फेथ दिखा लें, चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, दे आर डूम्ड, क्योंकि ये पैदा नहीं हुए थे मुस्लिम बन के।
ओके। ही यूज्ड टू, अच्छा अब ये भी है कि जो हमने कहा कि द अमास वेल्थ, तो ही यूज्ड टू अनहेजिटेटिंगली एक्सेप्ट एनॉर्मस गिफ्ट्स, ठीक है? जिससे कि ये भी पता चलता है कि उसने ये भी कभी देखने की कोशिश नहीं करी कि गिफ्ट का सोर्स क्या है। हुँ? वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर सेलिब्रेटेड, सी आई विल टेल यू, अथाह है ये इनका रिकॉर्ड्स, बहुत हैं, और मोर देन 400 दरगाहs हैं, ओके? एंड आई विल आल्सो टेल यू खानकाहs कितने हैं हमारे देश में। तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से वो जो कन्वर्जन्स हो रहे थे बेवकूफ़ बना कर के। आगे आई विल बी आल्सो टॉकिंग कि एप्रोप्रिएशन कैसे हुआ और कैसे दे फूल्ड द हिंदूज, या हाउ डिड द हिंदूज फील कि हम और ये एक हैं, या देयर इज नो डिफरेंस, और कैसे पीर समझ के वो उनको फॉलो करने लगे। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो। बहुत सारा मटेरियल है, बट हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ओनली ऑन द वेरी सेलिब्रेटेड वंस, ओके? सो निजामुद्दीन औलिया confirmed on the authority of the great Islamic jurist Imam Abu Hanifa. He said कि जन्नुम इज द ओनली अबोर्ड फॉर काफिर, मतलब हम जो हैं हमारे लिए जन्नुम के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है? हम चाहे इवन इफ दे आर अग्रीड टू बी लॉयल टू अल्लाह, तो ये आप यहाँ के मुसलमानों की मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ कि वो उनके लिए क्या कहा जा रहा है, उस जमाने में भी आज भी कहा जाता है, वो अभी आगे आएगा, कि तुम अग्री भी कर लो ना कन्वर्ट होने के लिए, तो भी तुम्हारे लिए जन्नुम ही है, चाहे तुम कितने भी लॉयल हो लो अल्लाह के लिए, ठीक है? और अब आप आगे देखो कि ये ट्रेड में कैसे, या स्लेव ट्रेड में कैसे, या प्रॉफिट्स में कैसे काम करते थे, कैसे बिजनेस भी करते थे। तो सूफी अली सीजी कह रहा है कि ही गेव, सूफी अली सेज ही गेव मनी टू दरवेश टू टेक स्लेव्स टू गजनी वेयर द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट इज स्टिल ग्रेटर, ठीक है? हमारे यहाँ भी थे, इस एरिया में अफगानिस्तान वगैरह में भी बन गए थे स्लेव मार्केट्स, लेकिन वो कह रहा है गजनी पे लेके जाओ क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि निजामुद्दीन औलिया ने इसको कंफर्म करा, और जो दरवेश है उसने ओबे करा, ओके? सो नाउ जो मैंने आपसे बताया था कि शाहजलाल और तबरीजी जो है उन्होंने बंगाल जो है वो पूरा वो करा, इस्लामाइज करा। तो यहाँ पे है कि ये शाहजलाल जो है, गाजी कहते हैं उसको, वो 700 जिहादियों के साथ में यहाँ पे आया था, ठीक है? और उसके बाद ब्लेसिंग लेकर के आया था टू सक्सीड इन जिहाद अगेंस्ट काफिर्स। उसको दारुल हर्ब, माने जो लैंड वॉर पे है, और जब वो कन्वर्ट कर दी गई तो वो हो गई दारुल इस्लाम। तो निजामुद्दीन औलिया ने उसको 360 जिहादियों को लेकर के भेजा टू फाइट अगेंस्ट राजा गौर गोविंद, दुष्यलत का राजा था, तीसरी बार, क्योंकि दो बार वो इन लोगों को हरा चुका था, तो तीसरी बार भेजा। और वहां से इसने इतनी बूटी और इतना वेल्थ अमास करी, इतनी लूट करी कि उसके बाद में वो लग्जरी में रहने लगा। एंड ही लेफ्ट बिहाइंड फॉलोअर्स टू प्रोपोगेट इस्लाम इन द एक्वायर्ड टेरिटरीज। जो जो टेरिटरी एक्वायर करते जाता था वहां अपने अपने फॉलोअर्स छोड़ते जाता था। फिर इब्राहिम शाह शार्की अटैक्ड गणेशा's kingdom at the request of outraged ulema and numerous Sufis of Bengal, ठीक है? मतलब कि कोई दूसरा अटैक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसी सूफियों के रिक्वेस्ट पे कर रहा है। सूफी नूर कुतबी आलम सिक्योर्ड अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट। जब लड़ाइयाँ चल रही हैं तो पॉलिटिकल एग्रीमेंट करके जब भारी पड़ने लगता था कोई हिंदू राजा इन पे, तो ये कोई ना कोई ट्रीटी करने की कोशिश करते थे। उसके 12 साल के बेटे को कैप्चर कर लिया और उसको कन्वर्ट करके और जो है राजा प्रोक्लेम कर दिया, और जो बाद में दे कन्वर्टेड हिम into a ruthless, violent this guy who killed the Hindus later. Now, some important quotes from Amir Khusro. Amir Khusro ने 6 consecutive सुल्तान्स के साथ में रहा है, and he's written enormous बुक्स एंड मटेरियल्स। सो उसका बहुत सारा हमको मटेरियल मिलेगा करने के लिए। एक और मैं छोटा सा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देना चाहती हूँ, विच आई हैड आई थिंक जस्ट स्लिप्ड माय माइंड। सो देयर वाज दिस वन पीर बद्री आलम, ठीक है? वो हिंदुओं के हिंदुइज्म से इतना इम्प्रेस था कि उसने अपने आसपास एक लेजेंड बना लिया कि वो जब चिटगांव में आसाम में आया था तो वो एक फ्लोटिंग रॉक पे आया था, और वो अराकन और चिटगांव के बीच में कैसे ट्रैवल करता था मालूम है? ऑन अ फिश। और वो फिश कौन थी? मत्स्य अवतार ऑफ श्री विष्णु। कैन यू बीट इट? इस तरह के जब तुम लेजेंड्स क्रिएट कर दोगे तो वहाँ के जो बेचारे अनपढ़ या सीधे साधे भोले भाले ट्राइब्स या हिंदूज हैं, तो वो तो बुद्धू बन करके आपको फॉलो करेंगे ही ना, आपको बड़ा पीर और वो समझेंगे, उनका सेवियर समझेंगे।
तो अब अमीर खुसरो अपने अलग-अलग उसमें क्या लिख रहा है? अरे अमीर खुसरो को जिसको कि ये करा जाता है, ही इज़ एक्सॉल्टेड एज़ अ द poet, the founder of Hindu Indian music. So some interesting thing about Amir Khusro. इसको बड़ा सेलिब्रेट करा जाता है कि म्यूज़िक का क्रेडिट उसको दिया जाता है कि इंडियन क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूज़िक इसने बनाया। मृदंग या पखावज को 2 टुकड़े में काट के तबला बना दिया, सितार बनाई, पोएट था, ब्ला, 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 ब्ला इतना कुछ दिया। अभी यहाँ तक ऑलरेडी आप देख ही रहे हो और आगे अप्रोप्रिएशन में आई विल टेल यू कि इनका अपना क्या था और इन्होंने हमें क्या दिया। तो ये किस चीज़ को क्लेम करते हैं कि व्हाट इनके पास था क्या जो ये हमको देंगे? या आर्ट और व्हाटएवर दे टॉक ऑफ। सो इन शॉर्ट म्यूजिक जो है हमारा दैट स्प्रिंग्स अप फ्रॉम द वेद, स्पेशली समवेद। वेदों में हमारे ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ ड्रम्स के मेंशन्स हैं और अगर आप तबले की बात करोगे खुसरो ने बनाया था 13वीं सदी में खुसरो है और 8-9 सेंचुरी का टेम्पल भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर टेम्पल के सीलिंग के ऊपर तबला बजाते हुए स्कल्पचर्स हैं, सितार बजाते हुए हैं। भरत मुनि ने जो ह्यूमन बॉडी है उसको गात्र वीणा कहा गया वेदों में, जिसके ऊपर भरत मुनि ने एक वीणा बनाई जिसे चित्रा कहा गया। दैट वीणा उससे और दूसरे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आए, सरोद आया। चित्र वीणा से इन्होंने रबाब बना लिया। ओके, सो ऐसे करके विचित्र वीणा है जो कि कंप्लीट इसमें बहुत सारे ऑक्टेव्स हैं, इट्स अ कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट इन इटसेल्फ। उससे सितार आई। सो दिस इज़ हाउ ये भी कभी हम अलग से इसको और डिटेल्स में बात करेंगे ताकि हमारे ये फंडे भी क्लियर हो सके। हम किसी अच्छे-अच्छे म्यूजिशियन हिंदुस्तानी क्लासिकल को भी पूछें, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग हिंदुस्तानी क्लासिकल? इट इज़ हिंदू क्लासिकल, नो? Yeah. So now let's just share a few slides on Amir Khusro. Yeah, he says heroism of our holy warriors has saturated the whole Hindu nation. Hindu blood flowing from the sword of Islam. कि वो कह रहा है कि पूरे धरती जो है लाल हो गई है इस्लामिक वॉरियर्स की स्वॉर्ड से और जो बादल थे कुफ्र के काफिरों के वो छट गए हैं। माइटी वॉरियर्स ऑफ हिंदूज हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। और वो ये बता रहा है जो हमने हनफी कोड की बात करी थी जो आपको ऑप्शन देता है कि या तो जजिया दे दो या कन्वर्ट हो जाओ। तो वो कहता है कि अगर उसने हनफी कोड ने इनको नहीं बचाया होता तो हमने इनको रूट एंड ब्रांच खत्म कर दिया होता। फिर वो कह रहा है प्रेज बी टू गॉड फॉर एग्जॉल्शन ऑफ द रिलीजन ऑफ मोहम्मद। उसके तारीफ कर रहा है कि वाह उसका रिलीजन क्या फैलाया है भगवान ने। स्टोन्स आर वर्शिप्ड बाय काफिर्स बट द स्टोन्स डिड नो सर्विस टू देम, they only bore to heaven the futility of that worship. Praise to be Allah who so ordered the massacre of all Hindu chiefs by his infidel smitten sword. मतलब जो प्यार में थी इन्फिडल कुफ्र को मार डालने में जो बिलीव करती थी स्वॉर्ड, उसको ऑर्डर किया गया कि वो हिंदुओं को कैसे खत्म करे। फिर वो कितनी कनिंगली वो कह रहा है कि अब ब्राह्मणों को जो आप गालियां देते हो आपको पता ही नहीं ब्राह्मणों को किस तरह से अटैक किया गया है। हेड्स ऑफ ब्राह्मण्स एंड आइडोलेटर्स डांस्ड फ्रॉम देयर नेक्स एंड फेल टू द ग्राउंड एट द फीट at their feet and blood flowed in torrents. नदियों की तरह खून बहता था। Now coming to Kashmir, like I said कि enormous है content, but I had to just pick and choose some important ones. Sufi Sheikh Shamsuddin Muhammad Iraqi allied with Musa Rana. ये कौन है? ये जिसे जो वहां पर आया कश्मीर में, ओके मूसा रैना से उसने अलाई किया और 1500 से 2000 हिंदूज वर ब्रॉट टू हिज डोर स्टेप एवरी डे। रोज 1500 से 2000 हिंदुओं के जनेऊ उतारे जाते थे, उन्हें कलमा पढ़वाया जाता था, उन्हें सरकमसाइज किया जाता था और फोर्सिबली उनको बीफ खिलाई जाती थी। तो वो कहते हैं कि about 24,000 Hindu families were converted by force by Iraqi there in Kashmir. और बहुत रीसेंट है वहाँ के कन्वर्शंस। सो अब बहुत से कश्मीरीज वहाँ से भाग गए। लॉट्स ऑफ देम वेंट टू गुरु तेग बहादुर फॉर हेल्प ऐसे एंड मैनी जब बहुत से लोग वापस से रिकन्वर्ट भी होने लगे। सो व्हेन मैनी
converted Hindus started returning to their Hindu fold. Many hundreds of them were slaughtered en masse. एक साथ मार दिए गए by Malik Qazi Chak of Sultan Muhammad Shah by the orders of Shamsuddin Iraqi. ठीक है, सूफी ने ऑर्डर दिया था उनको मारने को. एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था कि हम गाजी सूफी की बात करेंगे. गाजी सूफी कौन? जो ये है, what do you call this one? Salar Masood. Okay, Salar Masood was the nephew of Mahmud of Ghaznavi. वो उसकी बहन का बेटा था और सलार इसका बेटा था, बहन का बेटा था. सो वो एट द एज ऑफ 11 भी आया था विद गजनवी टू अटैक गुजरात एंड द सोमनाथ मंदिर. और वहां पर दिस कोर्ट सेज कि व्हेन द हिंदूज केम टू नेगोशिएट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मूर्ति, सलार मसूद द बीटल ईटर, पान खाने वाला कहा जाता था उसको, उसने क्या ऑफर करा कि ये मूर्ति में तुम्हें या शिवलिंग कैसे रिटर्न करूंगा, पीस के चूने में मिला करके और पान में वो करके रख के उसको तुमको लौटा दूंगा, तुमको मुझे डबल गोल्ड देना पड़ेगा उसके उसके बदले, देन आई विल रिटर्न द योर सोमनाथ जी दिस थिंग टू यू, द शिवलिंग टू यू. फिर राजा सुहेल देव, he with the help of many other rajas and nobles and chief of that area, and also Raja Bhoj, yeah, they attacked, they gathered, they attacked, they had many fights with them, and they finally killed Masood, Salar Masood. And the army, वो बता रहा है, उसका रिकॉर्ड बता रहा है कि the army of the enemy was innumerable like mountains on every side. The numerous army of Islam was mown down like grass. मतलब उन लोगों ने इनकी धज्जियां उड़ा दी इस्लामिक सलार मसूद की आर्मी की. Many nobles met their death फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग नमाज, मतलब शाम, सुबह की नमाज से शाम की नमाज तक 2/3 जो है वो मार दिए गए थे और उनको मौन करने वाला भी कोई नहीं बचा था. और वो कह रहा है कि राजा सुहेल देव ने क्या करा, सीइंग द आर्मी ऑफ इस्लाम रिड्यूस टू नथिंग, यूनाइटेडली अटैक्ड मसूद, एन एरो pierced the main artery of the faithful. Unbelievers drove his descendants from Ajmer and, मतलब भगा दिया, उसके बाद उसको मार डालने के बाद वहां पे से वापस भगा दिए सारे मुस्लिम्स और रीएस्टैब्लिश कर लिए अपने मंदिर और आइडोलेटरी. वो कह रहा है कि उन्होंने वापस से हिंदुस्तान के लैंड पे उसको कर लिया. ओके, so there is Chirag Dilli, yeah. So Nasruddin Chirag, उसने क्या क्या किया, वो he purified the Sufi practices, and brought them in harmony with Sunnah. See what they have to say, कि उसने जो भी सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको और प्यूरिफाई कर दिया और सुन्नत के साथ उनको लेवल पे बराबर ला दिया. और जहां पे भी स्लाइटेस्ट क्लैश था उसने सुप्रीमेसी जो थी वो शरिया लॉ की कर दी. फिर there was this Sultan Ahmad Shah, a practicing Sufi who delighted in destroying, who took his delight in destroying the temples. और वो राजपूतों को फोर्स करता था अपनी बेटियों को उससे ब्याह देने के लिए, ताकि एक तो वो बच्चियां हो जाएंगी, उनके बच्चे मुस्लिम हो जाएंगे और जो राजपूत थे वो भी आउटकास्ट हो जाएंगे. जब कोई आउटकास्ट हो जाता था हमारे में तो ऑब्वियसली उसको फोर्सफुली वहां पे इस्लाम फॉलो करना पड़ता था. फिर जो कश्मीर की हमने बात करी थी 1381 में सईद अली हमदानी था, व्हेन ही केम देयर, तो उसने भी सबसे पहला काम जो किया वो उसकी एक बड़ी खानका है वहां पे अभी भी, ही ब्रोक द टेम्पल एंड ही क्रिएटेड, वहां पर भी जितने भी खानकाज हैं दे आर ऑल क्रिएटेड ऑन टेम्पल. Now I will talk to you about the appropriations. That is a very interesting thing कि क्या क्या ये हुआ क्या, जब भी सूफीज ये बने कैसे, जब जब इनिशियल इनके जो रेड्स और वॉर थे शुरू के 620 से लेकर के 622 24 से 30 तक, जब वो इनिशियल जो थे रेड्स थोड़े कम होने लग गए, तो देन द ओल्डर वंस, द ओल्डर गाजीज, इन्होंने जा करके जो काफी टेरिटरीज के फ्रंटियर्स थे वहां पे जा जाके अकेले बसना शुरू कर दिया और वहां पे वेले बैठे हुए हैं, देयर इज नथिंग, दे वर आइडल, दे हैड नथिंग टू डू एंड दे वर वेटिंग कि कभी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो लड़ेंगे. तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी तुम अगर बोलोगे तो क्या अपॉर्चुनिटी दो है. एक है कि तुम होली वॉर लड़ रहे हो, ठीक है, और अल्लाह की राह पे चल रहे हो और जो तुम्हें जन्नत मिलनी है वो मिलनी. दूसरी, अमासिंग वेल्थ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो जब भी कोई रेड हुई, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा स्लाइड में कि 1/5 of the booty will go to the Khalif or the messenger and the rest will be distributed among the jihadis. Okay.
सो दिस इज़ वन मेन रीज़न कि जब आप कहीं पे जिहाद करोगे, कहीं पे अटैक करोगे तो उनका जो कुछ भी सामान है, मतलब व्हाटएवर यू आर एबल टू कैप्चर इंक्लूडिंग द वुमेन, you will share them among yourselves. So that was a major luring thing that lured people, to come together and fight. So when these people were sitting idle over there in those frontiers, हमारे जो वॉन्डरिंग साधुज हुआ करते थे, जो हमारे कलन यू नो साधुज हुआ करते थे, when they used to travel because they used to roam about the entire world and especially those regions, क्योंकि वहाँ पे तो हम ऑलरेडी ट्रेड करते थे और एग्जिस्ट करते थे, तो they were the these retired, so-called retired jihadis of Egypt, Syria, क्योंकि वो सब तो तब तक हो ही चुका था इस्लामिक, those Persians, तो ये सब दे वर सो इम्प्रेस्ड, ये एक्सचेंज भी करते थे, बातें भी करते थे हमारे साधुओं के साथ, दे वर सो इम्प्रेस्ड कि इन्होंने बहुत सी चार चीज़ें उनकी इमुलेट करके अपने आप में लेनी शुरू कर दी और बहुत सी चीज़ें फॉलो करनी शुरू करी, तो इसीलिए वो बेशरा और बाशरा भी हुआ कि जिन्होंने शरिया फॉलो करा वो स्ट्रिक्ट हुए, बेशरा हुए जिन्होंने फॉलो नहीं किया, जो कभी इंडिया आए नहीं, उनमें से एक था मंसूर, वन इंटरेस्टिंग थिंग आई विल टेल यू, ही प्रोबेबली गॉट एनलाइटेंड, मिल के ध्यान लगा लगा करके, तो ही स्टार्टेड सेइंग अना अल हक। नाउ अना अल हक मीन्स आई एम ब्रह्मा, अहम ब्रह्मास्मि, और ये इनको तो मंजूर नहीं था, तो दे टोल्ड हिम टू स्टॉप सेइंग दैट कि तू भगवान नहीं है, भगवान तो वो एक ही है, हमारा एक ही किताब है और एक ही भगवान है। तो जो इन्होंने करा, आगे भी चल के आप हजार जगह देखते हो, मूवीज में देखते हो, पढ़ते हो कि सबसे पहले उसकी आंखें निकाल दी, आंखें निकाल, अब बोल अनहलक, ही सेड अनहलक, एक हाथ काट दिया, अनहलक बोल, ऐसे करके करके बिट बाय बिट दे कट हिम टिल ही ब्लेड टू डेथ, बट ही केप्ट सेइंग अनहलक, मीनिंग आई एम गॉड, आई एम अहम ब्रह्मास्मि। सो ऐसा हुआ, तो इसलिए वो तो कभी यहाँ आए नहीं। और उसके बाद जितने भी यहाँ पर आए वो आप अभी तक देख ही चुके हो कैसे हैं। अब मैं थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें इसकी आपको बताती हूँ, कुछ कोट्स इसमें बताती हूँ स्लाइड्स में, कि क्या-क्या इन लोगों ने हमारा फ़ॉलो करा और कैसे-कैसे ये अप्रोप्रिएशन हुआ हमारे सिस्टम्स का। जो शुरू-शुरू के इनके खानका वगैरह बने, उ उसमें जो है इनके जो गैदरिंग्स होती थी, समा कहते हैं उसको, और मोस्ट ऑफ द कन्वर्टेड हिंदूज़ थे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो तुम आके कन्वर्ट कर ही चुके थे, तो वो जो है जो गाने गाया करते थे, तो ये इनको हिंदवी राग कहा करते थे, जिससे इन्होंने फिर आगे जाकर के हिंदुस्तानी म्यूज़िक कहा। तो अब ये हिंदवी राग भी कौन गाते थे? जो कन्वर्टेड हिंदूज़ होते थे, है ना? उनमें एक था जिसे कि फ़कीर मधु कहते थे। फ़कीर मधु का एक शिष्य था जो बहुत अच्छा गाता था। फ़कीर मधु कन्वर्ट होने के बाद भी ही हैड नॉट चेंज्ड हिज़ हिंदू नेम। सो हिज़ नेम वाज़ शेख अहमद व्हाटएवर। सो उस ही यूज्ड टू सिंग वेरी गुड भजन्स एंड ऑल। तो अब ऐसे हमारा म्यूज़िक इनकॉर्पोरेट कर लिया इन्होंने, जो जिनका डांस और गाना जो कहते हैं कि सूफ़ी बड़े पीसफुल होते हैं, और आप अब इसके बाद जब भी सुनोगे ना सूफ़ी म्यूज़िक और सूफ़ी ये, तो डोंट प्लीज़ गिव द क्रेडिट टू द peaceful Sufis, give the credit to your Hindus, because they were the ones who used to sing then, and they were the ones who gave them that art. So उसके नाम पे जो भी ये आज तक कमा के खा रहे हैं ना, that credit also goes to the Hindus and the music from our शास्त्र। सो अब एक और था काज़ी रुकनुद्दीन समरकंदी, उसने हठ योग सीखा, और जिनसे सीखा वो एक ब्राह्मण था, सिद्ध बोजार उनका नाम था, और उसने अमृत कुंड को ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन में। ऐसे करके हमारी बहुत सारी किताबें ट्रांसलेट हुई, और ये ट्रांसलेट भी क्यों होती थी? क्योंकि तुमको उनको समझना था, सीखना था और आर्ग्यू करके ब्राह्मणों को हराना था। तुमको कोई शौक नहीं था उनको सीखने का। फिर जो कलंदर हैं इनके सूफ़ी कलंदरी, वो वॉन्डरिंग हैं, तो इनको जो बाकी सूफ़ी हैं बड़ा रिस्पेक्ट नहीं करते और इनको अपनी खानकाहों में जगह नहीं देते नॉर्मली, क्योंकि सूफ़ी कलंदर जो है वो वॉन्डरिंग ही रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे कहीं पे अपने खानका नहीं बनाते, पर बाकी सूफ़ी जो हैं वो अपने लॉजेस और अपने घर-वर और ये सब बनाते हैं। तो इन्होंने जो है, जो कान में ये इयररिंग्स पहनते हैं, जो हमारे कम्फर्ट योगी थे, इन्होंने उनसे वो कानों में कुंडल पहनने बोरो करे। फिर एक सईद मुर्तज़ा था जिसने योग कलंदर लिखा, और कलंदरी डिसाइपल और योगी, मतलब कैन यू इमेजिन उसका नाम क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है योग कलंदर। मतलब खाली कलंदर कुछ लिखता तो ठीक है, आगे भी योग लगा के लिख रहा है। फिर जो निज़ामुद्दीन औलिया है, उसने प्राणायाम की प्रैक्टिसेज़ सारी की सारी अडॉप्ट कर ली। और एक था जो अब्दुल कुदुस, उसने तो पूरा का पूरा ही वाज़ सो इन्फ्लुएंस्ड बाय श्री गोरखनाथ कि उसने पूरा का पूरा एक नाथ गोरख हिंदू दोहे लिखे। हाँ, और ये दोहे लिख रहा है हिंदी में, और कम से कम 6 बार तो गोरखनाथ जी का उसके किताब में
रेफरेंस आती है। बट डिस्पाइट दैट, और उसने शिव शक्ति पे भी लिखा है, ओके, शिव शक्ति पे भी लिखा है, उसने अपने फॉलोअर्स को ये भी कहा है कि एक ओंकार के ऊपर, उसको वो जिक्र कहता है एक ओंकार के ऊपर मेडिटेट करो। तो सारी चीजें इन्होंने वहां से उठा करके एप करी, अप्रोप्रिएट करी। लेकिन इस सब के बाद भी लुक एट हिज मेंटल मेकअप, व्हाट इज ही राइटिंग, ओके। वो बाबर को सजेस्ट कर रहा है, जब बाबर आ गया, बाबर एस्टेब्लिश हो गया, तो सजेस्ट कर रहा है कि जो इनके रिलीजियस पुलिस है ना, दैट शुड बी अपॉइंटेड टू एनफोर्स शरिया एंड कलेक्ट जजिया इन टाउन्स एंड बाजार्स। नो काफिर शुड बी अपॉइंटेड इन एनी पोस्ट इन दीवान एंड ऑफिस। Kafir should get no financial support, must pay jizya on agriculture and commercial undertakings, and the kafir must live a miserable life. He must dress differently, and he should not be treated as equal to Muslims. Okay, so ये आपकी काफियों की कहानी है, सूफियों की कहानी है। और अब आपको यहाँ पे इनकी किताब बता दे रही है कि पोइट्री एंड म्यूजिक इज हराम, 26.224 में, हाँ, बुखारी के। आर्ट, म्यूजिक, पोइट्री, आर्किटेक्चर, साइंस, लग्जरी एसेट्रा आर कैटेगोरिकली प्रोहिबिटेड भी कहा जा रहा है। ये वर्सेस लिखी हैं किताब की 43.33, 35, 6.32। हु थिंक, आगे क्या कहा जा रहा है, बुखारी क्या कह रही है, हु थिंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लॉफुल विल बी डिस्ट्रॉयड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एप्स एंड पिग्स। जो सोचते हैं कि म्यूजिक परमिटेड है, वो या तो सुअर बनेंगे और या तो वो एप्स बन जाएंगे। Those who follow the prophet, who can neither read or write, सुन्ना में क्या तारीफ करी जा रही है, क्यों ये लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप जो मर्जी सब पटक लो, सबका विकास, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है कि भैया फॉलो करना है प्रॉफिट को, सुन्ना फॉलो करनी है, प्रॉफिट कुड नॉट रीड एंड राइट, ओके। अब म्यूजिक के बारे में क्या लिख रहा है वो गियाजुद्दीन दराज, वो लिख रहा है नन, आपको वहाँ मना करा जा रहा है, लेकिन जब वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने उसके अंदर, अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो क्या कह रहे हो, नन वॉज एज इफेक्टिव, सटल, एलिगेंट एज हिंदवी म्यूजिक दैट पेनिट्रेटेड डीपली इनटू द हार्ट। मतलब इस तरह से आप हमारे म्यूजिक की तारीफें कर रहे हो, लेकिन उधर आपकी किताब जो है आपको वो सारी चीजें मना कर रही है। अब सीधे हमारा सूफी चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और हम आते हैं स्लेवरी के चैप्टर पे। और अब ये मैंने आपके सामने इसलिए रखा है ये स्लाइड, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं इतना सुनने के बाद भी ये आएगा, या ये आता रहेगा लेटर व्हेन पीपल वॉच इट ऑन द यूट्यूब, ये आता रहेगा कि यार हमारे देश में ही काहे के लिए यार इतना सारा उठा करके कन्वर्ट कर दिया, और कहीं और कुछ नहीं किया क्या, तो आपको तो पता ही है कि 56 जो देश आज इस्लामिक हैं, दे वर नॉट इस्लामिक वंस अपॉन अ टाइम। और वहाँ के कुछ मैं आपको बताती हूँ, जस्ट अ फ्यू लिस्टिंग फ्रॉम देयर। तो चाहे किसी भी कंट्री में जाकर के इन्होंने उनको कन्वर्ट किया हो, उनकी उनकी फॉलो करके, अपने फुटस्टेप्स फॉलो करके अपने प्रॉफिट के, उनकी लैंड्स को और उनको कैप्चर करके उसके बाद उनको ट्रीटीज उनके ऊपर इम्पोज कर दी जाती थी कि आपको ट्रिब्यूट, एनुअल ट्रिब्यूट तो भेजनी ही है, वेल्थ भेजनी है और स्लेव्स भेजनी है, जिसमें से 1/5 जो है वो खलीफ को चली जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने त्रिपोली को 643 में कैप्चर करा, सूडान को 652 में किया, हाँ, फिर ऐसे करके ट्रांसऑक्सानिया को किया, अर्मेनिया को किया, फेजान को किया, और सबके ऊपर ऐसे और कंट्रीज को किया, उनके ऊपर एनुअल ट्रिब्यूट्स लगा दी। 698 में मूसा बिन नुसैर ने 3 लाख काफिरों को किया, एनस्लेव किया। 711 में 30,000 गोथिक नोबिलिटी की विमेन को किया, उसके साथ में बाकियों को भी किया। 7,000 में ग्रीस में 7,000 ग्रीस में किए, 700 में अमोरिया नाम में इन्होंने इतने सारे स्लेव्स किए कि वो कह रहे हैं कि इतने ज्यादा हो गए थे कि उनको बैचेस में उनको बेचना पड़ा। और थेसलोनिया में 22,000, ओके। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, क्योंकि ये आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। इसके बाद ये यहाँ पे खत्म नहीं हो जा रहा है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज एनुअल आनी है इसके बाद भी उनको, ठीक है। 1064 में जॉर्जिया और अर्मानिया में इतना स्लॉटर किया, कोई बचा ही नहीं, कि उन्होंने जो भी बचे थे सारे के सारे स्लेव्स बना दिए, ठीक है। 3000 इन लिप्सन, 3000 इन 119, 1019,
in size 1268. फिर सुल्तान अल ज़हीर करके उसने 16,000 मारे और 1 लाख क्रिश्चियंस को स्लेव ले लिया। कह रहे हैं कि स्लेव मार्केट्स इतने गटेड हो गए थे, ऐसे भर गए थे, स्लेव मार्केट भी बनाए जा रहे थे, इतने भर गए थे कि द गर्ल्स वर सोल्ड फॉर 5 दिरहम्स एंड द बॉयज वर सोल्ड फॉर 12 दिरहम्स। कीमत देख लो आप। अब एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसको बहुत लोगों ने फॉलो करा। इंटरेस्टिंग एंड सैड ऑफ कोर्स। ओटोमान सुल्तान जो था और खान, उसने ऑन एन एवरेज 12,000 बच्चे, बॉयज, यंग बॉयज 8 से 10 साल के पर ईयर कैप्चर करता था। ग्रीस, जॉर्जिया, साइबेरिया, बुल्गारिया, अर्मेनिया, मैसेडोनिया, और इन सबको खाली ट्रेन करता था ओनली फॉर जिहाद। And they were, a regiment, they were made into a regiment called Janissary। और Janissary का मतलब क्या पता है? जानिसारी। हम्म मतलब गिव योर लाइफ फॉर द गॉड, फॉर द अल्लाह। सो ये अपने बैरक्स में ही रहते थे एंड दे वर नॉट परमिटेड टू गेट मैरिड। और इसको, इस पॉलिसी को ये कहते थे देवश्रिम। इसको भी ये कुरान से जस्टिफाई करते हैं 842 से कि वॉट एवर यू गेन एज स्पॉइल्स ऑफ वॉर 1/5 ऑफ इट इज फॉर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। फिर इसके साथ ये जो जेनेसरी है, इन्होंने जो आप जिसको आज व्हाट डू यू कॉल, वी नो इट एज द इस्तांबुल, या इस्तांबुल वाज वंस अ Byzantine Constantinople capital of Rome. Yeah, okay, Georgia, Serbia, Bulgaria, Bosnia, yeah. So the Constantinople also जो इन लोगों ने जीता, वो basically they were trying from 630 but they could not win it. So it was who? It was this Janissary who won it for them in 1453. So we can also clearly see कि इन लोगों ने कैसे वहीं के लोगों को, मतलब जहाँ गए वहीं के लोगों को कैप्चर करके, वहीं के लोगों को इंस्लेव करके, train करा to actually fight and capture their own lands. So मोरक्कन सुल्तान जो था, उसने सिमिलर टू देवश्रिम, उसने भी एक बनाया which was called Bukhari, and he had 25, मतलब वो जिहादी, जो फियर्स जिहादी ट्रेन करता था, and 25,000 तो उसके कैपिटल को गार्ड करते थे, स्लेव्स, अफ्रीकन स्लेव्स, and 75 जो है स्टेशन रहते थे उसके गैरिसन टाउन में। वो भी 10 इयर्स के बच्चों को ब्रीडिंग, स्लेव ब्रीडिंग फार्म्स भी थे तब तक, स्लेव ब्रीडिंग फार्म्स से उनको उठाता था। they were castrated and they were made into fierce jihadis called Bukhari। 20 lakh African slaves were transported from Africa and Red Sea coast to the Islamic world in the 19th century alone. And in the 18th century, 13 lakh, an estimated 1.5 crore were enslaved till the 19th century. 18 to 20,000 slaves were sent in every trip to Cairo. So this is how they were also, capturing and enslaving people of other countries other than India. So यहाँ पर वापस से कुछ कोट्स आ जाते हैं कि अल्लाह इंडिया में कि स्लेवरी इन इस्लाम, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्लाह bestowed upon Mahmud booty beyond calculations, including 5 lakh slaves, men and women, apart from King Jaipal, his children, grandchildren, nephews, chief men and tribes of his relatives who were driven away to Ghazni for selling. एंड किस तरह की ह्यूमिलिएशन होती थी उनकी, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि on the 8th day of Muharram, Raja Jaipal was paraded with other captives। एक इतने बड़े राजा को, who was like called Maharaja Dhiraj Jaipal, Hindu Shahi Raja, who defended the country for 100 and whose dynasty defended for 111 years, जिसके बाद जिनकी डिफीट के बाद the Indian heartland was open to Ghazni's repeated attacks. He was sold for 80 dinars in a slave market of Khurasan, auctioned in front of his own relatives. अब अगर हम ये सोचेंगे कि was it so simple and so easy कि they could capture the Hindus? It wasn't, because बहुत सारे हमारे लोगों को इन्हीं की बुक्स में और इन्हीं के historians ने लिखा है कि they were beast like warriors, so it wasn't easy for them to capture them।
So they used to use a lot of tactics to capture them, surround one or say a group with many specialists जिनको train करते थे इनको capture करने के लिए. They used to throw lassos and ropes और bind them with hide, hide की ropes बना करके उससे बांध के chains से और they were driven, kept hungry and in adverse conditions, and they were, other Hindus and their families were slaughtered in front of them there, until they totally broke down, their spirits broke down. Is tarah karke they managed to capture our people. So 1,000 women and children were enslaved from 17 to 1730 when Sindh fell. 3 lakhs Hindus were captured and enslaved overall. Muhammad Ghaznavi took 5 lakh slaves, took so many from Punjab that they became very cheap. In 1019, he took 2 lakhs and 53 from Thanesari took, says Utbi. 50,000 Kanis or Ghulam were rewarded with the honor of Islam, says Farishta. Under Aibak and Muizuddin, even the poorest Muslims owned numerous slaves. मतलब आप कैप्चर कर लो, ले जाओ, बांट दो, तो हर गरीब से गरीब भी हिंदू स्लेव्स रख के बैठा था. एंड फिर एक जगह वो कह रहा है खलीफ्स booty that was kept aside included 1,50,000 slaves. That means ki 7,50,000 slaves probably. When Gauri attacked Banaras, slaughter of Hindus was so immense that none was spared except women and children who were enslaved. Carnage of men went on until the earth was weary. When Raja Bhim was attacked, Aibak captured 20,000 Hindus. In 1202, at Kalinjar, he enslaved 50,000. कि लाइक आई सेड कि रेजिस्टेंस की अगर कोई बात करेगा कि हमने रेजिस्ट नहीं किया क्या, एक हमने कहा कि छल कपट से कैसे आपने हमारे लोगों को कैप्चर किया. इवन व्हेन इट वाज विनिंग वॉर्स, आई एम 100% श्योर एवरीबॉडी नोज इट, बट स्टिल शेयरिंग अ फ्यू पॉइंट्स. ऋग्वेद भी मेंशन करता है कि जब आप लोहे का बना हुआ, द फर्स्ट मेंशन ऑफ आयरन भी ऋग्वेद में मिलता है कि जब आप लोहे का बना हुआ तीर यूज करते हो तो उसको आपको विश नहीं लगाना है एनिमी के लिए. मतलब एथिक्स, हमारे वॉर एथिक्स तब भी दिखते हैं और मॉरल्स क्या है हिंदू कम्युनिटी का वो भी दिखता है कि बाय डिसीट तुम्हें एनिमी को कभी नहीं मारना है. तो आप एक हिंदू राजा दूसरे राजा पर तभी अटैक कर सकता था if he was more powerful than the other. That too, he cannot just stand up and go and attack. He has to first send a messenger. मैसेंजर सामने वाला या उसको एक्सेप्ट कर ले वॉर को और या यूं ही सरेंडर कर दे. ठीक है, उसके बाद होगी लड़ाई. जब वॉर होगा तो वो शहर से नगर से दूर कहीं होगा, उसका टाइम होगा, सनसेट के बाद नहीं होगा. ठीक है, मैसेंजर को कभी मारा नहीं जाएगा. अगर एनिमी के हाथ से कभी उसमें डिसीट नहीं यूज करी जाएगी. अगर एनिमी अकेला पड़ जाएगा और आप बहुत सारे हो जाओगे तो आप उसको नहीं अटैक करोगे. अगर उसका आर्मर गिर जाएगा तो अटैक नहीं करोगे. वो सरेंडर कर देगा तो अटैक नहीं करोगे. वो रिट्रीट कर देगा तो अटैक नहीं करोगे. अगर वो घायल हो जाएगा तो अटैक नहीं करोगे. आप अगर जीत गए तो कभी भी उनकी उसमें यू विल नॉट एंटर देयर द सिविल regions, villages and towns and bother or disturb them. You will not change anything. You will not impose any new taxes or nothing. You will only ensure that your rule is better than or more beneficial than the earlier. And also one more thing कि राजा हमारे यहाँ का पिता है. He is the father of the nation. इसको कोई हमको शेयर नहीं देना है क्योंकि वो लड़ने गया तो हमारे जो वॉरियर्स होते थे वो कमिटेड थे और वो कोई स्टैंडिंग आर्मी कभी-कभी हमारे पास होती थी, कभी-कभी नहीं भी होती थी क्योंकि वो काम करती रहती थी. अदरवाइज कोई इसलिए ट्रेन नहीं होती थी कि वो जिहादी बन के उसको खाली मार डालना है लोगों को. सो दे वर जस्ट नॉट क्रूअल बारबेरियंस, यू सी. सो जो किसी लालच में आ रहे हैं कि जब जीत जाएँगे कहीं पे, तो लूट-लाट करके सामान इकट्ठा कर लेंगे ढेर सारा. तो इन टर्की बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसे दिखाते हैं क्योंकि टर्क्स ने बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया इस्लाम को. तो जब भी वो कहीं जाके जीतते हैं, तो उनके बाज़ार जो है ना, दे स्टार्ट सेलिंग वेल और दे स्टार्ट उनकी इकोनॉमी राइज़ होती है वॉर के बाद. इट्स वेरी फनी, इज़न्ट इट? इकोनॉमी गिरनी चाहिए. राइज़ क्यों होती है? क्योंकि जब लड़के वापस आते हैं सोल्जर्स, तो वो इतना पैसा लेकर के आते हैं कि वो बाज़ार में फ्लो करता है. ये कितना उल्टा उल्टा सिस्टम है.
या सो दिस वाज समथिंग। तो हमारे साथ जब भी लड़ाई हुई, यहाँ पे मैं छोटे से 2-3 एग्जांपल दे देती हूँ हिंदू रेजिस्टेंस के, व्हिच आर इंटरेस्टिंग। वी टॉक्ड अबाउट सिंध। अबाउट 100 years they were fighting, the Chak rajas, Raja Dahir। और हमने उस टाइम पे बात किया था कि कैसे उसके 3 बच्चे देवाल के किले के 3 बच्चे कैप्चर कर लिए थे, एक का सर काट के भेजा था। फिर जब लेटर ऑन जब राजा दाहिर फिर रास्ते बदले थे, प्री पीस ट्रीटी के लिए वो भेजा था, लेटर भेज के, और पीछे जाके अटैक कर दिया। इस तरह की चीज़ें करी व्हिच वी नेवर डिड। So we were not used to it. Okay. So then later when Ruth will come, now this is a very very interesting account, I'm sure you guys are going to love this। ये तो किसी को पता ही नहीं, रुतबिल और जनबिल करके, उनको रुतबिल ये लोग कहा करते थे, अरबी कहा करते थे। तो काबुल और जुबल करके द एंटायर दैट अफगान बेल्ट, वो रूल करते थे द हिंदू राजाज हु वर कॉल्ड काबुल शाहीज। सो इन्होंने 200 साल रेजिस्ट करा, काउंटर अटैक्स किए, और इन्होंने हमको ये भी कहा जाता है कि हम कभी बाहर नहीं गए टेरिटरी से मारने, किसी को लड़ने या काउंटर अटैक नहीं करा। ये भी 1-2 एग्जांपल्स आई विल गिव यू। सो इसके कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स क्या हैं रुतबिल के। 200 साल लड़े। सो फादर फॉट, द सन फॉट, एक बार नहीं हजारों बार। 200 साल में कितने उन्होंने अटैक्स किए होंगे, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। उन्होंने एवरी अटैक को फेल करा, उनके लोगों को कैप्चर करा, उनके लोगों को मार डाला, कई बार कैप्चर करके उनसे पैसे लिए उनको छोड़ने के। कितने? 5 लाख दिरहम, 3 लाख दिरहम, 7 लाख दिरहम। एब्सोल्युटली अनहर्ड ऑफ कि हमने भी ऐसा किया है। रैंसम लिया है अगले से, वो आगे कुछ-कुछ स्लाइड्स में आएगा, ठीक है? और देन एक बार तो ये भी किया कि ही लेट देम एंटर, ओके, राइट टिल द सेंटर ऑफ हिज किंगडम आने दिया, और आगे पीछे के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। ब्लॉक करके he made them suffer। They were starving to death to the extent they started eating their own horses। उसके बाद भी इनसे 3 लाख दिरहम लेकर के इनको छोड़ा गया। दो सेकंड उनका बेटा था, उसने भी एक बार कैसा करा कि हजाज जो था इराक का गवर्नर, वो बार-बार अटैक करता था। ही इज़ द कॉज़ सिंध के लिए, ही इज़ द वन हू सेंट बिन कासिम हिज सन इन लॉ एंड नेफ्यू। सो ही रुकता ही नहीं था। हर बार ये लोग इनको जब कैप्चर करके और इनसे पैसे लेते थे, तो उनसे ट्रीटी साइन करवाते थे, बट दे नेवर अबाइडेड बाय द ट्रीटी। सो व्हाट ही डिड, एक बार जब अटैक करने के लिए दिस अब्दुल ही हैड सेंट, तो ही फेल्ड, वो वापस चला गया। वापस जा करके उनके वहाँ पे कूप हो गया, डिस्टर्बेंस हो गई, तो वो वापस भाग करके आ गया रुतबिल की शरण में। सो हजाज केप्ट आस्किंग कि इसको लौटा दो। 4 इयर्स, 700 से 704 तक ही डिड नॉट रिटर्न हिम। जब वो हार गया, तो उससे ट्रीटी साइन करवा करके कि ही विल नेवर टर्न एंड लुक एट दिस एरिया रीजन, हिंदू रीजन अगेन। उसने क्या भेजा उसको? उसका सर काट के भेजा। First time ever, paid back in the same coin that these guys paid them back। Then Raja Jaipal, Hindu Shahi Rajas came। Raja Jaipal का भी we just read a little this thing। उसको चीट करके मारा गया। उसके बेटे आनंद पाल को चीट करके मारा गया। ये राजा जयपाल वाला और जो वाला अकाउंट है, ये मैं बहुत अच्छे से बैक ऑफ माय हैंड इसलिए जानती हूँ बिकॉज़ आई कम फ्रॉम दैट लीनिएज, खोखर लीनिएज व्हिच आई टोल्ड यू, जहाँ जहाँ जिसके साथ में हमारे घर में वी हैव द बुक्स कि हाँ, किस-किसने लड़ा अलोंग द साइड ऑफ राजा आनंद पाल, राजा त्रिलोचन पाल, भीमपाल। हिंदू शाही के साथ कैसे लड़ा? दे वर द वन्स हू किल्ड गौरी। They entered his camp, at 20 of them, and they stabbed him to death, dispatched him to hell। So I come from this thing। So आनंद पाल मतलब कैसे-कैसे चीट करा, जब जयपाल हावी हो रहा था उनके ऊपर और वेदर खराब हो गया, तो ही टैक्टफुली रिट्रीटेड। और ये जो है पहले आ चुके थे, ये पहले इन लोगों को देख चुके थे, इनको ये पता था कि इनके साथ में जब आप कोई ऐसी गंदी ट्रिक्स करो, तो ये दे बहुत अवर्जन्स होते हैं इन लोगों को। तो ये सोती हुई राजा जयपाल की आर्मी के ऊपर, क्योंकि उस दिन क्लाउडी था, डार्क था, तो सोती हुई 2 बजे रात के इन्होंने जयपाल की आर्मी पे अटैक करा, और दे केम इन ब्लैक, वेयरिंग ब्लैक। दे टाइड फेल्ट एंड क्लॉथ ऑन द फीट ऑफ देयर कैमल्स एंड हॉर्सेस, ताकि आवाज नहीं हो, और आके सीधे सोती हुई आर्मी के ऊपर फीसेस, एक्सक्रीटा पानी में मिला करके स्प्रे करा। So suddenly when they woke up in the middle of the night and suddenly washed up and they tried to fight and all that, and that is how उसको भी घेर करके इन्होंने कैप्चर कर लिया। Later on अनंत पाल when he fought, अनंत पाल के साथ भी जब हावी होने लगा उसका,
बहुत वॉर्स हुए, आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स। देन दे सेंट रिक्वेस्ट फॉर ट्रूस। ट्रूस का रिक्वेस्ट आया, उसके बाद में इन्होंने रिक्वेस्ट करा कि कैन वी हैव अ मील टुगेदर विद, तो हम लोग तो जो हैं ही अतिथि देवो भव वाले, हमने उनको आने दिया अपने कैंप में, अपने कैंप में एक लंच के लिए इनवाइट कर दिया। और दे वर वेरी हैप्पी एलिटेड लुकिंग एट द एलिफेंट्स को, ये लोग फ्रूट खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, कैन आई ऑल्सो फीड करके मिंगलिंग करते हुए उन्होंने उनको ओपियम खिला दी। अगले दिन जब वॉर, और फिर उसके बाद में चारों ओर से घेर करके जब वो डीकैंप कर रहे थे, अगले दिन चारों थिंकिंग की हो गया, शांति हो गई, नो मोर फाइटिंग, चारों ओर से घेर के, दीज आर ऑल देयर इन द रिकॉर्ड्स, these are there in their own records, and some books are also there by other Muslim historians from Pakistan generally, who are not any more Muslims and who live in US and places like that. So then these guys surrounded them from all the sides, attacked them. Obviously the elephants had gone unruly. तो और एक चीज़ जो उन्होंने पर्शियंस के साथ भी करी थी, यहाँ अगेन जो हमने कहा कि एथिक्स नहीं फॉलो करते थे, तो वहाँ से स्टार्ट किया कि घेरना, कैप्चर कैसे करना, दैट वी टॉक्ड अबाउट। फिर जो हाथी है उसके हावड़े को अटैक करना। हावड़े, कोशिश करो कि हावड़ा टूट जाए या फिर किसी न किसी को खरीद के ऑपोज़िट कैंप से सेंड हिम सो दैट वो उसको लूज़न कर दे, उसके हावड़े के बेल्ट्स को। और उसके बाद जब वॉर शुरू होगी, रिज़्यूम होगी या वॉर चल रही होगी, उस टाइम पे blind the hathi with Nafata burning arrow in one eye. उसको चोट लगेगी तो वो यहाँ वहाँ भागेगा और आधी तो खुद ही की उसको ट्रैम्पल कर देगा। Obviously the ruler will fall. Many a times दाहिर के साथ भी ये हुआ, but दाहिर immediately took a mounted a horse. This happened with this one also. इसका आनंदपाल का हाथी जब भागा तो अनाउंस कर दो कि आनंदपाल भाग गया। The army is disturbed क्योंकि सडनली खड़ी हो रही है लड़ने के लिए, डिकैम्प करते करते, अनकैम्प करते करते, और उसके बाद राजा भाग जा रहा है बिफोर दे कैन अंडरस्टैंड। वो उसका हाथी फॉलो करके एंड दे द मोमेंट ही फेल, उसकी गर्दन काटा और पियर्स करके भाले के ऊपर, और डिस्प्ले कर दो, ये पर्शिया में हुआ, ये हर जगह हुआ, ये हर वॉर में हुआ कि द मोमेंट लीडर की या राजा की खोपड़ी दिखाई जाएगी तो सडनली द soldiers will be demoralized and upset for a while, and they will either retreat, तो retreating army को पीछे तक follow करो, शहर में जाओ और शहर लूट लो। So these are the kind of things। उसके बेटे त्रिलोचन पाल का भी ये हुआ कि नकली साधु बन करके आए। दिस वाज इन 1026। नकली साधु बन करके आए कि अफगानिस्तान से आए हैं, क्योंकि तब तक उनकी किंगडम जो है बहुत रिड्यूस होकर के श्रिंक हो गई थी, एंड ही हैड शिफ्टेड हिज कैपिटल नियर इन कांगड़ा। सो वहां तक जाकर के गो एंड साधु बन करके समहाउ टेक एंट्री और रात तक सोते हुए उसकी गर्दन उड़ा करके और गर्दन लेके चले जाओ। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स।